सर्वेषु जागृति कामं 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 कामोषो मोक्षो निर्विमानः निर्विमानः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वतदूनात् सर्वकश्च नान्यकीकश्च एतद्द्वैता 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 Good morning everyone. So before starting of the session, I have one announcement. On 22nd Feb, we are having the cultural event. This is the first time we are doing this event. It would be at Terapan Bhavan. This event is by BCC member, for the BCC member and from the BCC member. So there would be musical play which would be done by a BCC member only, singing, dancing, everything would by BCC member or CE members only. So this is the first time, so I request everyone to please come and enjoy this program. We have made the scanner form, registration form, so you can register. So I request everyone to please come join for this 22nd event. So now today's topic is new labor law. So I request Sandeep sir to kindly introduce our first speaker, C. Ankush Jain. Good morning friends and thank you Ravi bhai. Mr. Ankush Jain is a chartered accountant and our fellow membership. He is a partner at KNH Associates since November 2020. He has a proven experience in handling the large unorganized workforce, including the manpower management, contractual compliance, social security regulations, factory level compliance. He is an expertise in the experience in the HR, recruitment service, payroll management, labor law compliances, and industrial relation advisory. Expertise in labor law litigation, representing the clients across various authorities and managing complex compliances, disputes and effectively across the pan India. Significant exposure in the investigation led by the SFIO, ED and other investigating bodies, especially in relation to the assignment under the ILFS group and other large corporate structures. He is a major client of various listed companies and unlisted companies like Tata Digital Limited, Tata Infrastructure Limited. He is reached out at his office at Andheri, and I just now request Ravi bhai and Hiren bhai to please give a memento and receipt for the benevolent fund. I now request Mr. Ankush Jain to just take over the session. Hello. Good morning to everyone. Thanks to give me opportunity, especially Ravi sir as a convener, Deputy Convener Pradeep Manu sir, and the whole Borivali Central Civil District Circle members to give me an opportunity to interact with all of you in the hot topic, new labor codes
कि what are the highlights, what are the changes in the new labor codes, what is the effects of the CA, how we can give delivers to our clients, what will be the opportunity for us, and how it will affect the MSMEs, corporates, non-corporate sectors. So this is the topic which covers around 3 hours, 3.5 hours. But as the time I will give brief most of the highlights, most of the sections, most of the topics in this my PPT in the presentations. I will also take over the questions and answer sessions from you. Thank you. Thanks for allowing me. I can start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि न्यू लेबर कोड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 नवंबर 2025 को 4 न्यू लेबर कोड्स डिफाइन करे। हम उससे पहले बात करते हैं कि यार 21 नवंबर को ये क्यों आए, ये तो पहले ही बन चुके थे। हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग 29 हमारे जो लेबर लॉज हैं, जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, वो सारे एग्जिस्टिंग में थे। गवर्नमेंट ने उसको सिंपलाइज करते हुए, उसका कवरेज करते हुए, उसका एक्सपांशन करते हुए उसको क्या करा कि 2019 में ही बन गया था। 2020 में कुछ कोड्स बन गए थे, बट बिकॉज ऑफ द स्टेट्स का जब तक उसमें परमिशन नहीं मिलता है, उनका असाइनमेंट नहीं मिलता है, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। फाइनली 2025 में गवर्नमेंट ने स्टेट्स को लूप में लेते हुए, उनसे एग्री करते हुए ये कोड्स डिफाइन कर दिए गए। तो जो 29 एग्जिस्टिंग हमारे लेबर लॉज हैं, उनको कवर अप करते हुए 4 लेबर कोड्स में डिफाइन कर दिया गया। दिस इज द कवरेज ऑफ द न्यू लेबर कोड्स। तो इसमें 4 हमारे एग्जिस्टिंग कोड्स कवर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोड ऑन वेजेस 2019 की, नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अब यहाँ पे क्वेश्चंस मार्केट में ये आता है सभी के सामने कि यार सारे कोड्स चेंज हो गए क्या, सारे लॉज चेंज हो गए क्या? नहीं, अभी यहाँ पर जो चेंज हुआ है, जो भी चेंजेस है वो रिलेटेड टू सेंट्रल एक्ट्स है। स्टेट्स का पार्ट अभी भी सेम है। लाइक अगर हम बात करें प्रोफेशनल टैक्स की, लेबर वेलफेयर फंड की, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स की और अदर लोकल लॉज की, तो वो स्टिल सेम है, कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ है वो सेंट्रल एक्ट्स में चेंजेस हुआ है। तो जो भी कवरेज किया गया है, समराइज किया गया है, एक्सपांशन किया गया है, वो सेंट्रल एक्ट्स में किया गया है। तो वो जो 29 लेबर लॉज हैं, उनको कवर करते हुए 4 लेबर कोड्स दिए गए। और आगे हम अगर फर्दर बात करें कि किस लेबर कोड्स में कौन सा एक समराइज हो गया, कौन सा लॉज समराइज हो गया, तो सबसे पहले आता है कोड ऑन वेजेस 2019 की, जो कि 2019 में ही बन गया था, पर इम्प्लीमेंटेशन अभी 21 नवंबर 2025 को हुआ है। इसमें 4 एग्जिस्टिंग लेबर एक्ट्स हैं जो समराइज हुए हैं। सबसे पहले आता है पेमेंट ऑफ वेजेस 1936, सेकेंड आता है मिनिमम वेजेस, थर्ड आता है पेमेंट ऑफ बोनस एंड फोर्थ आता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो ऐसे 4 ऐसे एक्ट्स हैं जो वेजेस की बात करते हैं, इक्वल रिम्यूनरेशन की बात करते हैं, तो उनको कवर अप करते हुए कोड ऑन वेजेस 2019 दिया गया है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020। ये एक्ट या ये कोड 2020 में बन गया था, इफेक्टिवली 21 नवंबर से हुआ है। ये रिलेशंस की बात करता है कि इसमें क्या क्या कवर अप होंगे, ट्रेड यूनियंस की बात करता है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करता है। तो एग्जिस्टिंग 3 ऐसे एक्ट्स हैं जिनको समराइज करते हुए इस कोड में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो सबसे बड़ा हिट मारता है, जो गवर्नमेंट ने जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है आम पब्लिक के लिए, जो आम पब्लिक के लिए बेनिफिशियल्स हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल्स हैं, एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल्स हैं। तो ऐसे 9 एक्ट्स एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं जिनको समराइज करते हुए इस लेबर कोड्स में दिया गया है। दैट इज द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इसमें हमारे कवर होते हैं EPF, ESIC, एम्प्लॉयज कंपनसेशन, मटर्निटी, ग्रेजुटी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, साइन वर्कर्स, BOCW, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ऐसे 9 एग्जिस्टिंग लॉ है जो कवर अप करते हुए इस कोड्स में डाले गए हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसमें छोटे छोटे ऐसे एक्ट्स हैं जिनका मेजरली इफेक्ट्स कम होता है, बट जो इंडस्ट्रीज है, लार्ज कॉर्पोरेट्स है, वहाँ पर इसका इफेक्ट होता है। तो 13 ऐसे एग्जिस्टिंग 13 ऐसे एक्ट्स हैं या लॉज हैं जिनको समराइज करते हुए इसमें दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फैक्ट्रीज एक्ट की, माइंस एक्ट की, डॉक एक्ट, BOCW, प्लांटेशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर CLRA, ISMW, वर्किंग जर्नलिस्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट, सेल्स प्रमोशन एक्ट, BDN सिगार वर्कर्स एक्ट, साइन वर्कर्स एक्ट,
तो ऐसे 13 एक्ट्स हैं जिनको समराइज करते हुए इस लेबर कोड्स में दिया गया है। तो ये था ओवरव्यू कि यार ये 4 लेबर कोड्स में कौन कौन से एक्ट्स से कवर हो गए। तो ऐसे 29 एग्जिस्टिंग एक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं। ये सेंट्रल के सारे पार्ट थे जो सेंट्रलाइज होते थे। अभी स्टेट्स का जो पार्ट है, चाहे पीपी हो, एलडब्ल्यूएफ हो, सोप हो और अदर कुछ भी हो, वो एग्जिस्टिंग में है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो चेंजेस कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि की चेंजेस। हम डिटेल में जाने से पहले अगर हम स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे क्लाइंट्स को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। क्लाइंट्स हमको कॉल करता है कि सर क्या चेंजेस हो गए लेबर कोड्स में, क्या हमें हिट करेगा। तो हमारे माइंड में उसको डिटेल में बताने की तो नहीं है कि क्लाइंट समझ भी नहीं पाएगा डिटेल में, वो सब हमारे लिए है। तो मेजर चेंजेस क्या है जो क्लाइंट्स को हिट करेंगे या हमारी नॉलेज में होना चाहिए, हम क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकें। तो ये की चेंजेस हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं और क्लाइंट्स को डिलीवर करना है। सबसे पहला था मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर। कॉर्पोरेट्स और जो एमएनसीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, एम्प्लॉइज को हायर करती है तो वो प्रॉपरली अपॉइंटमेंट लेटर देती है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती है। बट अगर मैं बात करूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, डेली वर्कर्स की, वो उनके केस में क्या होता था, हायर किया, 2-4 दिन काम किया, फायर कर दिया। उनके केस में कोई प्रॉपर फॉर्मेलिटीज नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा चेंजेस उनके केस में ही किया है कि आपको अगर किसी को भी हायर करना है, किसी को भी कुछ रखना है रिलेशनशिप पे, तो आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करना पड़ेगा। सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज और कंडीशंस उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा चेंजेस जो सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को ध्यान रखना है, नॉन कॉर्पोरेट्स को ध्यान रखना है कि मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर है। जब तक आप अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं करोगे, फॉर्मल उसका ज्वाइनिंग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज द सिंगल रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर मैं बात करूं 29 ऐसे एक्ट्स हैं, तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है सबका सेपरेट है। पीएफ का अलग होता है, ईएसआईसी का अलग होता है, सीएलआरए का अलग होता है, आईएसएमडब्ल्यू का अलग होता है और जो भी एक्स बीओसीडब्ल्यू का अलग होता है। गवर्नमेंट बोलता है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, सिंपलाइज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बोला है कि हम सिंगल रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसी के अंदर सारे कोड सारे समराइज कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू। लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दिया जाएगा, एलाइन नंबर के थ्रू आपका सारा मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिंगल रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि उन्हीं लेबर कोड्स में आपको अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही उस पर टिक करो, आपको वो पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ऐसे ही डिपार्टमेंट ने आगे बोला है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के साथ साथ रिटर्न की प्रोसेस को भी सिंपलाइज करते हैं और मल्टीपल रिटर्न्स की जगह सिंगल रिटर्न का फॉर्मेट लेके आएंगे। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो अपने आपने सरकार पोर्टल के थ्रू या अदर जो भी पोर्टल है उसमें जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, चाहे मैटरनिटी, ग्रेचुइटी, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, उसका एनुअल रिटर्न जाता है। यही सेम फॉर्मूला सेंट्रलाइज करने जा रही है कि पीएफ, ईएसआईसी और जो भी एक्ट्स हैं उसको सेंट्रलाइज हो जाए और सिंगल रिटर्न में सारा कंप्लाइंसेज हो जाए। तो डिपार्टमेंट का यहाँ बोलना यही है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट इज द मैंडेटरी टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। कॉर्पोरेट्स मोस्ट प्रोबेबली मंथ एंड में या जो भी उनका स्टैंडर्ड डेट है उसमें पेमेंट करती है। बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो वहाँ पे पेमेंट्स कभी किसी केस में 7 दिन में होता है अगले महीने की, किसी केस में 10 दिन में होता है, किसी केस में 30 डेज का टाइम होता है, कोई फॉर्मल डेट नहीं है। वर्कर्स किसी किसी केस में फायर कर दिया जाता है, उसको पेमेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने यही बोला कि अब ये नहीं चलेगा, आपको टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा। कट ऑफ डेट दे दी गई है कि 7 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको किसी भी केस में पेमेंट करना है। अगर आप डेली वर्कर हैं तो डे एंड में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप वीकली हैं तो वीकेंड में पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपका मंथली सिस्टम है तो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है। दूसरा चेंजेस सबसे बड़ा यहाँ ये है कि एफएनडीएफ के केस में कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, तो उसके केस में हम लोग जनरली हमारे जो क्लाइंट्स है 30 डेज का, 45 डेज का, 60 डेज का टाइम लेता है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, जमाना चेंज हो गया, आपको जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। T+2 डेज में, जैसे शेयर मार्केट में कॉन्सेप्ट है कि माल बेचा 2 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, वैसे ही सेम एफएनडीएफ के केस में T+2 डेज में, अगले 2 दिन में पैसा उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्लियरिटी आगे फर्दर मैं ये दे दूँ कि कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर अगर कोई एक्सपोर्ट करके चला गया, फॉर्मेलिटीज पूरी करके नहीं गया, तो उसके केस में भी होगा। नहीं, यहाँ पर आगे मैंने क्लियरिफाई किया है कि जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है, जो भी रेजिग्नेशन फॉर्मेलिटीज है, नोटिस पीरियड प्रॉपर सर्व किया है, उसके केस में ये एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज तो जो कंपनीज की पॉलिसी है उसके हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट इज द नेशनल फ्लोर वेजेस सिस्टम।
दूसरी चीज उसमें मैं बता दूं, आगे जो पेमेंट्स होता था कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज तो ऑनलाइन ही पेमेंट करती है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स केस में भी पेमेंट करता है। डेली वर्कर्स को केस में दे दिया, काम खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने बोला केस का जमाना गया, केस सिस्टम नहीं चलेगा, हम ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन लेकर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर सारा का सारा पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन होगा। केस में अगर हम कोई भी प्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट को, दैट इज नॉट अलाउड। ओनली और ओनली डिजिटल मोड में अगर कोई पेमेंट किया है, चाहे जीपे से करो, ऑनलाइन करो, नेट करो, आरटीजीएस करो, ओनली वही अलाउड होगा। और वर्किंग डेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है कि अगर आपने, ऐसा नहीं है अगर डिजिटल मोड है तो आपको संडे के दिन पेमेंट नहीं करना है, छुट्टी के दिन आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, 7 तारीख मेरे संडे के दिन आ रही, नहीं, वो नहीं चलेगा। डिजिटल मोड का जमाना है, आप संडे को भी पेमेंट करो, क्लिक करो, पेमेंट हो जाएगा। तो ये वर्किंग डेज का कोई कॉन्सेप्ट भी उन्होंने खत्म कर दिया कि नहीं, अगर पर्टिकुलर डेट फिक्स करी है उसी डेट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द नेशनल फ्लोर सिस्टम। अभी अलग अलग स्टेट का अलग अलग मिनिमम रेट है। महाराष्ट्र का 6 मंथली चेंज होता है, कर्नाटका का अपने हिसाब से चेंज होता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का अपने हिसाब से चेंज होता है। सबकी रेट्स कम है, किसी की ज़्यादा है, मेट्रो सिटीज़ की ज़्यादा है, नॉन मेट्रो सिटीज़ की कम है। गवर्नमेंट ने बोला हम इसको खत्म करते हैं और नेशनल फ्लोर बेस सिस्टम हम लोग लेके आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करेगी, उस रेट के हिसाब से आगे कंटिन्यू फॉलो करना है। मिनिमम रेट उससे नीचे नहीं हो सकती, कम से कम आपको वो रेट एब्जॉर्ब करनी ही पड़ेगी। उससे अगर आप हायर रेट देते हैं स्टेट, तो स्टेट को वो रेट फॉलो करनी ही करनी है। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो चेंजेस है, सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल बेनिफिट दिया गया है और हाईलाइट दिया गया है, दिस इज द गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जो डेली काम करने वाले डिलीवरी बॉय हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उसके सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स की और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की आज तक कोई पॉलिसी नहीं थी, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। गवर्नमेंट ने चेंज किया। जो न्यू लेबर कोड्स में सबसे बड़ा चेंजेस है वो यही है कि अब जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उसको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में कवर किया जाएगा। आपको उसका भी पीएफ ईएसआईसी देना पड़ेगा। अब यहाँ पर माइंड में एक चीज़ सबसे बड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप 12% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ईएसआईसी का 4% कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, नहीं। गवर्नमेंट ने आगे फर्दर डिस्क्राइब किया और क्लेरिफाई किया कि उसके केस में जो एग्जिस्टिंग परमानेंट वर्कर्स की रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उनके केस में 1 से 2% की रेट होगी, और वो भी जो उसने बिजनेस दिया है पर्टिकुलर कंपनी को, कितना उसने डिलीवरी बॉय सर्व किया है, कितना उसने बिजनेस डन किया है, तो उस एग्रीगेट अमाउंट का 1 से 2% एक फंड बनाया जाएगा, उसमें कंट्रीब्यूट होगा और उस फंड के थ्रू उनके सोशल सिक्योरिटीज का बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप। सोशल सिक्योरिटीज पर ध्यान देते हुए, एम्प्लॉयज के हेल्थ पर ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी 40 ईयर्स एंड अबाउ ईयर्स का एज एम्प्लॉई है, चाहे एग्जिस्टिंग में हो चाहे आप हायर करो, उसका एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप आपको दिया जाएगा। उसका कोई चार्जेस आपको नहीं करना है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसका एनुअल हेल्थ रखना पड़ेगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग में हो या आप हायर करो। और एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज है, अगर कोई 40 ईयर्स की एज कंप्लीट कर रहा है, उसके केस में भी हमें उसको कवर करना है। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। नाउ कम्स टू द पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आधार बेस्ड सिस्टम, यूएन नंबर जनरेट होता है आधार के लिए, बट आज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, कल सेकंड जगह गया, कल परसों थर्ड जगह गया, तो उसके केस में मल्टीपल मेंबर आईडी जनरेट होती है। किसी किसी केस में ऑनलाइन अगर केवाईसी सारी कंप्लीट है तो ऑटो क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, ऑटो ट्रांसफर हो जाता है। डिपार्टमेंट ने बोला है कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए ऑटो प्रोसेस सिस्टम लगा देते हैं कि यूनिवर्सल पोर्टेबिलिटी हो जाएगी, सारे बेनिफिट्स आधार से लिंक कर देंगे, एक ही ईएसआईसी और यूएन नंबर होगा, और आगे जो भी सोशल सिक्योरिटी कोड जनरेट किया जाएगा वो होगा। आप कहीं भी जनरेट करें, आप महाराष्ट्र में काम करें, आंध्र प्रदेश में काम करें या इंडिया के किसी भी स्टेट में काम करें, आपका वो नंबर आगे पोर्ट होता जाएगा और उसी में आपके जो भी प्रीवियस बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यू होते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, वुमेन्स को यहाँ पर प्रायोरिटीज दी गई है कि वुमेन्स को नाइट शिफ्ट में अलाउ नहीं था, एक्सेप्ट फैक्ट्री और माइंस के केस में। अभी यहाँ पर उन्होंने उसको चेंज करते हुए ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स के केस में अलाउ कर दिया गया कि वुमेन्स को भी नाइट शिफ्ट अलाउड है, दे कैन वर्क इन द नाइट शिफ्ट सब्जेक्ट टू उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उनके सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके ट्रेवलिंग अरेंजमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वुमेन्स आर ऑल्सो अलाउड इन द नाइट शिफ्ट इन ऑल टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स। मतलब सरकार यहाँ पर करने जा रही है कि 24 घंटे आप अपनी शॉप ओपन करो और मार्केट ओपन करो, ना कि फैक्ट्रीज ओनली, सभी तरह के एस्टैब्लिशमेंट 24 आवर्स ओपन करो। नेक्स्ट इज द इक्वल पे फॉर इक्वल रेमुनरेशन।
पहले भी हमारे पास एक था इक्वल पेमेंट का, आगे उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि अगर किसी के पास सेम डिग्री है, सेम क्वालिफिकेशन है और सेम एक्सपीरियंस है और सेम पोस्ट पे, आप उसको डिग्रेडेट नहीं कर सकते मेल और फीमेल के बेसिस पे। उन्होंने उसको ऐड करते हुए, उसमें मोर एनहांस करते हुए ट्रांसजेंडर को भी कवर कर दिया है कि जेंडर के बेसिस पे अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए इक्वल पे और इक्वल वर्क होगा, उसी में आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट इज द सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी कवर्ड, मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ग्रीवेंस कमेटी। अगर आपके पास 500 मोर मैन पावर ऑलरेडी है, 250 मैन पावर ऑलरेडी है, तो आपको सेफ्टी कमेटीज बनानी पड़ेगी, उसमें वुमेन का ग्रीवेंस कमेटी में कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। पोस्ट पॉलिसीज जो होती है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, उसमें जो हमारी कमेटी मेंबर्स होती है उसमें पोस्ट पॉलिसी में वुमेन्स को रखना कंपल्सरी है। डिपार्टमेंट ने और इस पर जोर ध्यान देते हुए ये बोला है कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन कंपल्सरी होगा। दीज वाज द मेजर हाईलाइट्स। एक और मैं आपको बता दूं कि 48 आवर्स वीकली का गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट कर दिया है, मतलब अगर आपको मिनिमम 48 आवर्स सर्व करना है, उससे ज़्यादा अगर आप सर्व करते हैं तो आपको ओवर टाइम वेजेस दिया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है वर्किंग आवर्स में, ऐसा नहीं है कि आपको 6 दिन में ही सर्व करना है, 5 दिन में ही सर्व करना है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी पर डिपेंड करना है। और कंपनी की पॉलिसीज अगर उसको अलाउ करती है तो वो 4 दिन में भी 48 आवर्स सर्व कर सकता है, 5 दिन में भी कर सकता है और वीक में भी कर सकता है, बट 48 आवर्स से ज़्यादा उसको सर्व नहीं करना है। अगर 48 आवर्स से ज़्यादा आप उससे वर्क लेते हो तो आपको वर्क टाइम देना पड़ेगा और वो भी डबल रेट से पेमेंट देना पड़ेगा। वीकली ऑफ रखना कंपल्सरी है, जो कंपनीज की पॉलिसी नहीं है कि वो 24/7 काम करती है, 7 दिन काम करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में वो अलाउड नहीं होगा। दीज वाज द मेजर हाईलाइट्स इन अवर केस। यहाँ अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट्स क्या होगा, एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से क्या चेंजेस हैं, एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से क्या चेंजेस हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से, तो एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से यही है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे, कंप्लायंस सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल रिटर्न का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उसके केस में बर्डन आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज द वेजेस की डेफिनेशंस यहाँ पर चेंज कर दी गई है। पहले वेजेस का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं था, कुछ कॉर्पोरेट्स फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट्स फॉलो करते हैं, बट गवर्नमेंट ने उसमें चेंज करते हुए बोल दिया है कि अब यहाँ पर आपको मिनिमम 50% ऑफ द CTC बेसिक DA और रिटेनिंग अलाउंसेज में रखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, देन यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द कोड, सो सैलरी का वेज स्ट्रक्चर का 50% कंपल्सरी बेसिक और DA में और रिटेनिंग अलाउंसेज में रखना कंपल्सरी है। अगर ये हमारा चेंजेस हो गया है तो इसकी वजह से हमारा ESIC अमाउंट, ग्रेजुटी अमाउंट और लीव एंगेजमेंट अमाउंट चेंज होने वाला है। PF अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। डिपार्टमेंट ने उसको क्लेरिफाई किया कि हाँ, वो PF 12% भी आपका न्यू वेजेस पर एप्लीकेबल है, बट सब्जेक्ट टू वेज का सीलिंग लिमिट, एक्ट का सीलिंग लिमिट, और एक्ट में जो सीलिंग लिमिट दी गई है वो 15,000 रुपये की है। मतलब 15,000 का 12% 1,800 रुपये तो आपको करना ही करना है। उसके ऊपर अगर आप करते हो तो दैट इज द वॉलंटरी। तो अगर कंपनी वॉलंटरी करती है एनहांसमेंट, तो यहाँ पर PF का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ग्रेजुटी और लिव एंगेजमेंट में मेजर चेंजेस हैं, उसका हिट मारने वाला है और वो यहाँ पर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिंपली रजिस्ट्रेशन, सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल रिटर्न्स की बात हो गई है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज। अब ये क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर किसी को भी आप हायर करते हो पर्टिकुलर काम के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या साल भर के लिए, तो वो कवर होता है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज में। मतलब आपने उसका एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया कि आपने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टाइम पीरियड के लिए हायर किया है। तो FTs का नया कॉन्सेप्ट आ गया है। इस FTs की वजह से ही हायरिंग करना और रिक्रूटमेंट करना ईजी हो जाएगा, गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है। FTs को आगे ग्रेजुटीज में भी कवर किया गया है, मैं वो प्रोविजंस आगे कवर करूंगा, उसमें डिटेल में बात करूंगा। तो गवर्नमेंट का यही बोलना है कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स को, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज को हायर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमन वर्कर सेफ्टी एंड वेलफेयर। गवर्नमेंट ने जो ज़्यादा ध्यान दिया सोशल सिक्योरिटीज पे और वेलफेयर पे, वो यही है कि आप मेजरली मोस्ट प्रोबेबली एम्प्लॉयज की हेल्थ पर, आपकी वर्किंग कंडीशंस पर, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर ध्यान दो। एम्प्लॉय के लिए ऐसे अरेंजमेंट करो ताकि वो सेफ एंड सिक्योर फील करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो सारे हमारे पॉइंट्स एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से। अगर हम एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो क्या, तो एम्प्लॉय का बोलता है कि हायर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उसको मिल जाएगा।
जो लोग अभी कवर नहीं हो रहे थे पीएफ ईएसआईसी में, ग्रेजुएटी में, लिव इन्वेस्टमेंट्स में, चाहे वो एफटीज हो, वो भी अब यहाँ पे कवर हो जाएंगे और सोशल सिक्योरिटी जिनको बढ़ जाएगा। दूसरा सेकंड इफेक्ट ये है कि उनका इनहेंड अमाउंट यहाँ पर कम होने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएटी अमाउंट अगर बढ़ जाएगा, ईएसआईसी अमाउंट बढ़ जाएगा तो मंथली इनहेंड थोड़ा सा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, ऐसा नहीं है कि किसी को भी 7,000 पे हायर कर लिया, किसी को 10,000 पे हायर कर लिया। गवर्नमेंट फ्लोर रेट डिसाइड करेगी सभी स्टेट्स को ध्यान रखते हुए। तो कंपनीज मिनिमम टू मिनिमम वो वेज रेट देना कंपल्सरी है। अब आगे उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल के बेसिस पर, हाई स्किल के बेसिस पर। तो एम्प्लॉइज के प्रोस्पेक्टिव से उसको मिनिमम वेजेज जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। मोर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ ले ऑफ, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी बोल दिया कि अगर किसी को हायर एंड फायर करना है तो उसकी भी पॉलिसीज होगी। पहले जो 100+ मैन पावर के केस में जो रिक्वायरमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की, गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए 300+ मैन पावर के केस में कंपल्सरी कर दिया है कि अगर किसी कंपनी की स्ट्रेंथ 300+ ज़्यादा है तो उसके केस में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। अदरवाइज अगर एम्प्लॉइज प्रॉपर रेजिग्नेशन फॉर्मेलिटीज पूरे कर रहा है तो आप उसको फायर कर सकते हो। तो इसके केस में प्रोटेक्शन उन्होंने लगा दिया है। इंक्रीज सेफ्टी एट वर्क प्लेस, बेटर कवरेज फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये सबसे बड़ा चेंजेस उनके केस में ही है कि जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको अभी तक बेनिफिट्स नहीं था, यहाँ पर उनको बेनिफिट्स दे दिया गया है। उनके भी सोशल सिक्योरिटीज की बात की गई है, तो वो भी अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रो राटा ग्रेजुएटी, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज है, अगर बाय द वे 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है एफटीएस के केस में, बट कोई काम ऐसा है जो 3 महीने में कंप्लीट होना है, 6 महीने में ही कंप्लीट होना है, तो क्या ग्रेजुएटी उसको नहीं मिलेगी? गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको भी प्रो राटा बेसिस पे आपको ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी। तो जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज है उनके केस में ग्रेजुएटी का बेनिफिट्स मिलने वाला है। दीज आर द चेंजेस रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। अब मैं बात करूँ एज ए सीए, क्योंकि हम सीए कम्युनिटी हैं, हमारे लिए क्या बेनिफिट्स है, हम क्लाइंट्स को क्या सर्विस दे सकते हैं, हमारे लिए नया रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज इस कोर्स की वजह से है। तो अगर मैं बात करूँ, ये प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशन है जो कंपनीज के लिए है, बट यही अपॉर्चुनिटीज बनेगी हम सीए के लिए कि हम सीए एज ए सीए अपनी कंपनीज को, अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो एमएसएमई हो या कॉर्पोरेट्स हो, उसको क्या सर्विस दे सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनीज को अपना वेज स्ट्रक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। वेज स्ट्रक्चर रिवाइज क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपका जो भी सीपीसी है उसका कम से कम 50% बेसिक डी और रिटेनिंग अलाउंसेज में रखना है, और जो न्यू पॉलिसीज है उसके हिसाब से फॉलो करना है। तो हमारे सामने यही सबसे अपॉर्चुनिटी है सीए के लिए कि हम अपने क्लाइंट्स को पिच करें और उसको बताएं कि सर आपको वेज स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 21 नवंबर को कोड एप्लीकेबल हो गया, बट इफेक्टिव अभी नहीं है, क्योंकि कोई भी कोड बनता है, कोई भी एक आता है, उसके बाद उसके रूल्स आते हैं। रूल्स जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है उसी के बाद फाइनली वो एप्लीकेबल होता है। तो कोर्स 21 नवंबर को इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, बट इफेक्टिव नहीं है। अभी ड्राफ्ट रूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, स्टेक होल्डर्स और आम पब्लिक की कमेंट्स के लिए ओपन है 45 डेज के लिए। जब ये पीरियड ओवर हो जाएगा, गवर्नमेंट उसमें चेंजेस क्या करेगी, उसके बाद जैसे ही नोटिफाई करेगी, मोस्ट प्रोबेबली ये 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होने वाला है कोर्स। तब तक का ये जो हमारा पीरियड है, दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड। इसमें हमें ओल्ड से न्यू में क्या चेंजेस करना है, ओल्ड से न्यू में क्या रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, एपेंडेंट के प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये ट्रांजिशनल पीरियड्स है। इस ट्रांजिशनल पीरियड में ही कंपनीज को अपनी सारी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, न्यू अपॉइंटमेंट लेटर्स बनाने हैं। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड्स में हम लोग अपने क्लाइंट्स को पिच करना है, सर्विसेज देना है कि ये इस पीरियड्स में आप ये चेंजेस कर लो, ताकि इफेक्टिवली 1 अप्रैल 26 ऑनवर्ड्स स्मूथली एप्लीकेबल हो जाए और कंपनी को हिट ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वेज स्ट्रक्चर की। सेकेंड, हमारे पास कंपनीज के केस में थोड़ा सा ऑब्लिगेशन यहाँ पर आने वाला है एफएनडीएफ के केस में, क्योंकि 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज में कंपनी पेमेंट करती थी, तो फंड उसी हिसाब से अरेंज करके पेमेंट करती थी। अभी यहाँ पर T+2 डेज में पेमेंट करेगी, तो कंपनी को एफएनडीएफ उसी हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा, अपना बजट उसी हिसाब से एलोकेट करना पड़ेगा। तो कंपनी के केस में थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है। अपडेट रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बोल रही है सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल रिटर्न का कॉन्सेप्ट, तो सारे सम सुविधा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अपडेट होंगे, अलाइन नंबर जनरेट होंगे। तो ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी कि हम अपने क्लाइंट्स को पिच करें उनके रजिस्ट्रेशन अपडेट करने के केस में। नेक्स्ट है मेंटेन रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पर प्रॉपर ध्यान दिया है। अभी तक कोई फॉर्मल प्रॉपर नहीं था
का किसी ने मेंटेन किया, लार्ज कॉर्पोरेट्स मेंटेन करती है, रजिस्टर मेंटेन करती है और सबमिशंस करती है एनुअल बेसिस पर। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, आप पेपर रिकॉर्ड वाला फॉर्मेट छोड़ दो यार, अभी नहीं चलेगा, अभी डिजिटल मोड का ज़माना आ गया है। आपको सारे अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, मंथली वेज रजिस्टर जो भी है सब वर्चुअल मोड में ऑनलाइन मेंटेन करने हैं। डिपार्टमेंट का जो भी इंस्पेक्शन और असेसमेंट होगा वो भी वर्चुअली होगा। इनकम टैक्स में जो कॉन्सेप्ट है फेसलेस असेसमेंट, सेम फेसलेस असेसमेंट की बात डिपार्टमेंट लेबर कोड में भी बोल रहा है, लेबर स्ट्रक्चर्स में भी बात कर रहा है कि आपको सारा रिप्लाई ऑनलाइन ही फाइल करना है, ऑनलाइन ही वर्चुअल हियरिंग आपको मिलेगी। नेक्स्ट आता है सेफ्टी कंप्लाइंसेस। कंपनी को अपने एम्प्लॉइज की सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स का कंप्लीट ध्यान रखना है। 40+ ईयर्स के केस में कंपल्सरी एनुअल हेल्थ चेकअप की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। सेफ्टी पीपीईज का ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्टर साइड पे, तो ये सेफ्टी पे थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया है। तो दीज आर द मेजर ऑब्लिगेशंस फॉर द एम्प्लॉयर, और यही हमारे सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम अपने क्लाइंट्स को कैसे पिच कर सकते हैं, ये केस में हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आगे फर्दर हमारे पास कोड्स डिटेल में बात करने की कि किस कोर्स में क्या चेंजेस है। तो इन बिटवीन अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो मैं उसको कवर करना चाहूँगा कि मेजर हम 4-5 पॉइंट्स हम लोग कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं आप ऑडियंस की, ताकि हम आगे फिर डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि ये सर क्या होता है, जरा बोलते जा रहे हैं। यस, Leave encashment will be only on the wages or the इट विल बी ऑन द बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंसेस। only not on the complete cost of the company? नो, पहले भी वो बेसिक प्लस डीए पे था, अभी वो बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंसेस 50% पे कर दिया गया है। Why they have styled as code instead of act? कोड उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है कि इसमें 29 एग्जिस्टिंग ऐसे लॉज और एक्ट्स कवर्ड है उन्होंने, तो उन्होंने उसको एक समराइज करते हुए बोला है कि ये एक पर्टिकुलर हिट मारने वाला एक ऑलरेडी जो एक्ट्स है उसको कवर कर रहा है, तो उसको एक्ट्स का नाम ध्यान नहीं करके उन्होंने कोड का किया है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर मेथड होगा जिसके थ्रू वो एक पर्टिकुलर चीज़ आइडेंटिफाई होगी। यस, तो सीए फॉर्म्स के लिए ये स्ट्रक्चर कैसे होगा? मतलब आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स को भी एप्लीकेबल होता है? यह सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। आर्टिकल्स अप्रेंटिसी को छोड़ के जो हमारे ट्रेनीज हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी हैं, उन सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो भी एम्प्लॉयमेंट में कवर किए जाते हैं, तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। Domestic workers, सॉरी, domestic worker house. हाँ, डोमेस्टिक वर्कर्स, हाउस देखो वो केस में जो मेजरली जो ये एप्लीकेबिलिटी है 10 और मोर्स के केस में एप्लीकेबल है कोर्स। बिलो के केस में जैसे में पीएफडी एप्लीकेबल नहीं होता, ईएसआईसी की एप्लीकेबल नहीं होता, ग्रेचुइटी एप्लीकेबल नहीं होती, मैटरनिटी एप्लीकेबल नहीं होती, तो बिलो 10 एम्प्लॉइज के केस में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम आ जाती है कि सोशल सिक्योरिटीज कवर करने की, बट जो वहाँ पर आपको पेमेंट करना है और उसका वेलफेयर करना है वो थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज ये जो एप्लीकेबिलिटी एक्ट्स की और कोड की वो मोर देन 10 एम्प्लॉइज के केस में एप्लीकेबल है। 10 या 20? सर अलग अलग एक्ट्स में अलग है, पीएफ में 20 है, ईएसआईसी में 10 है और ग्रेचुइटी में 10 है, मैटरनिटी में 10 है, तो अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग है। मेजरली अगर मैं बात करूँ तो 10+ के केस में एप्लीकेबल है। स्टेट्स का जो भी पार्ट था वो सब ड्राफ्ट रूल्स में उन्होंने कवर कर दिया। सब स्टेट्स को सेंट्रल का जो ड्राफ्ट है वो फॉलो करना है और अपने कमेंट्स दे रहे हैं, तो सेंट्रल का स्टेट का जो पार्ट था वो भी इसमें कवर कर लिया है, सब्जेक्ट टू 29 सेंट्रल एक्ट्स जो स्टेट के एक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँ पीटी की, लेबर वेलफेयर फंड की, सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट सेक्स की, अगर जो भी लोकल सेस है वो कंटिन्यू है स्टेट के पास, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 50% आपने बताया कि वेरी लिमिट है बिल्डिंग का, स्पेशली व्हेन देयर इज अ वेरिएबल परफॉर्मेंस। अब आगे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा वेज स्ट्रक्चर्स पे, जब हमारा टॉपिक आएगा तो मैं आपको वहाँ फर्दर क्लेरिफाई कर दूंगा उसको। यस, Contract worker who is in the role of somebody else who is working in our organization. What is the rule for that? There is a lot of talks going on. कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में उन्होंने बोला है कि अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक्सक्लूसिवली आपके यहाँ पर काम कर रहा है, एक्सटेंसिवली आपके यहाँ पर काम कर रहा है, तो उसका कवरेज आपको लेना पड़ेगा, उसका कंप्लाइंस करना पड़ेगा। बट कोई एम्प्लॉय नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे कर रहा है, मैंने आपके यहाँ पे भी सर्विस दे दी, उनके यहाँ पर भी दे दी, उनके यहाँ पर भी दे दी, तो वो केस में कवर नहीं है। Somebody is just like that contract person. I like also easy company. They are the role of they are working or nice place somewhere.
what is the, we have to pay the PF we are कॉन्ट्रैक्टर्स को तो पहले भी कंप्लाइंस करने थे अपने एम्प्लॉइज के जो हायर करता है। तीन कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। सबसे पहला था प्रिंसिपल एम्प्लॉय, जो मेन ओनर है वो आगे कॉन्ट्रैक्ट देता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स आगे एम्प्लॉय हायर करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है अपने एम्प्लॉयज का कंप्लायंस करना सारा उसका पास पहले भी एप्लीकेबल था, उसको करना ही करना है। अब यहाँ पर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं किया उन एम्प्लॉयज का तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को करके देना पड़ेगा। क्लियर? कुछ और डाउट था? ओल्ड एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट लेटर कब से देना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स कंपल्सरी एप्लीकेबल है। But we have to write some effective from नहीं, अगर इफेक्टिव फ्रॉम वही रहेगा 1 अप्रैल 2026। इन बिटवीन अगर किसी को हायर कर रहे हैं, दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड्स। अभी ट्रांजिशनल पीरियड्स में हमें केवल रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, फॉर्मेट्स फॉलो करने हैं, पर इफेक्टिवली 1 अप्रैल से ही उनको देना है न्यू जो अपन अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। नवंबर 21 से हो गया 21 नवंबर से ओनली ग्रेचुटी और लीव एंगेजमेंट्स एप्लीकेबल हुआ है। बाकी सारे प्रोविजंस अदर नोटिस एजीटीज कंटिन्यू है जब तक कि रूल्स फाइनलाइज नहीं हो जाते। गवर्नमेंट ने उसमें क्लेरिफाई कर दिया। इंस्टीट्यूट ने उसमें आगे गाइडेंस नोट्स में बोल दिया है कि ग्रेचुटी और लीव एंगेजमेंट्स के प्रोविजंस ही फॉलो करने हैं। अदर जो लॉज हैं, चाहे पीएफ हो, ईएसआईसी, पैटर्निटी हो, उसके प्रोविजंस ओल्ड एक्ट के हिसाब से कंटिन्यू रहेंगे। जूनियर एम्प्लॉइज है उसको जूनियर एम्प्लॉइज को भी रिस्ट्रक्चरिंग करके अपॉइंटमेंट लेटर आपको 1 अप्रैल से देना पड़ेगा। अब they will not sign the appointment letter with effect from 1 April because they will say I will use the benefit. सर उसमें लिखा जाएगा ना कि विद इफेक्ट फ्रॉम, आपने उसको कब हायर किया था, एक्चुअल ज्वाइनिंग डेट उसकी क्या थी, वो केस में उसका फॉर्मेट दिया है गवर्नमेंट ने उसका कि जो अपॉइंटमेंट लेटर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उसके केस में कैसे होगा। एनीथिंग? यस। क्वेश्चन ऑफ बेसिक प्लस अदर अलाउंस, विद अदर अलाउंस इंक्लूड एचआरए। यहाँ पर सेपरेट डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि एक्सक्लूजन्स में क्या क्या आएंगे। एक्सक्लूजन्स में दिया गया है कि एचआरए, लीव एंगेजमेंट, ग्रेचुटी, कमीशन, बोनस। तो जो आपका अलाउंसेज है वो एचआरए में नहीं होता है कवर, एचआरए सेपरेट है। अब यहाँ पर कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एचआरए दो या ना दो। पहले कंपल्सरी था कि यहाँ एचआरए देना पड़ता था इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है ओनली बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंसेज पे है। एक्सक्लूजन पार्ट्स उन्होंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, मैं आगे कवर करूंगा उसको कि एक्सक्लूजन्स में क्या क्या होंगे। आर्टिकल 20 are not, article 20 are covered, but article 20 are covered by case law, right? यस। But who are not covered? They are being applied. अप्रेंटिस में जो भी आते हैं एम्प्लॉइज वो कवर नहीं होते, उनका एक सेपरेट एक्ट है और उसके प्रोविजंस अप्रेंटिस के हिसाब से चलते हैं। उसमें पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुटी के अप्लायंसेस भी उनके हिसाब से अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से होती है। या In case of appendix, we said it's 3+2. यस। Corporates generally it takes time. It's not, I mean, they have to validate their investment growth, calculate legal encashment, gratuity, and that appendix rolled out to the respective staff for their confirmation. So, कोई भी एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो उसको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। कंपनीज की पॉलिसी होती है 30 डेज की, 45 डेज की। तो अगर एम्प्लॉयज ने रिजाइन किया और जो उसकी लास्ट वर्किंग डेट थी उसके बाद उसको T+2 डेज काउंट किया जाएगा। तो आपके पास अगर एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया है, वो प्रॉपर हैंडओवर दे रहा है, तो आपको फॉर्मेलिटीज वहीं से स्टार्ट कर देनी है। हैंडओवर अगर वो दे रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो कंप्लीट सर्व करेगा, तो आपकी जो रिलेवेंट फॉर्मेलिटीज है वहीं से कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके इन्वेस्टमेंट्स वहीं से चेक हो जाने चाहिए, उसका जो भी ड्यूज बाकी था वो वहीं उसी दिन चेक हो जाना चाहिए। जो absconding cases हैं और जहाँ स्टाफ कॉपरेट नहीं कर रहा है हैंडओवर में, तो वो केस में ये कोर्ट्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेंटेन करना इस कंपल्सरी है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है, एम्प्लॉयज ने प्रॉपर कॉपरेट किया है कंपनीज की पॉलिसी के हिसाब से, तभी ये कोर्ट्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। अदरवाइज तो कंपनी उसका होल्ड कर सकती है। जब एम्प्लॉयज कंप्लीट करेगा अपनी फॉर्मेलिटीज तभी उसको पेमेंट होना है। क्वेश्चन 40+ health checkup, so we said now company can make a tie-up with insurance company or हाँ, labs, कर सकती है, कर सकती है। but वो enforce कैसे करेगा? If suppose any staff doesn't want to do or hesitates, so कुछ declaration का clarification दिया है या? जहाँ तक अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट है इससे,
क्योंकि फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है उसको। आजकल हर एक आदमी प्रीफर करता है इस टाइम पे कि उसका एनुअल उसको पता लग जाए कि उसका क्या स्टेटस है बॉडी का। तो मोस्ट प्रोबेबली वो सब एक्सेप्ट करेंगे। स्टिल अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो अगर वॉलंटरी कोई डिनाई करता है एम्प्लॉय, तो वो तो आज तक भी फॉर्मूला अवेलेबल था, वो आगे भी रहेगा। मेरा पॉइंट है कि एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको नहीं कर रहा है, कंपनी ने तो अपना पार्ट कर दिया। अभी कोई एम्प्लॉय है जो हेजिटेंट है या मेरी प्रॉब्लम हो सकता है, एम्प्लॉय को क्या कुछ डिक्लेरेशन लेना है? हाँ, एम्प्लॉय से डिक्लेरेशन लेना है। मैं वही बोला कि कंपल्सरी करना ही करना है। जो कंपल्सरी एप्लीकेबल हो गया। अगर कोई एम्प्लॉयज कंटिन्यू नहीं करता है, उस पार्ट को मानता नहीं है, तो वो उसमें डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से डिक्लेरेशन ले ले कि हाँ ये कवर नहीं करना चाहता, तो उसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं फिनिश हो जाती है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होना है। एनीथिंग एल्स? एग्जाम्पशन लिमिट 15,000 जो है, तो ऊपर वाले एम्प्लॉय को एग्जाम्पशन में तो वो कैसे भी कर देंगे। सो कैन यू स्पीक बेसिक प्लस 350,000 के ऊपर है, मेरा तो एग्जाम्पशन यस कंटिन्यू। इसका प्रोविजन सर पीएफ में बोला गया है कि पहले भी जो प्रोविजन था पीएफ का वही सेम आगे कंटिन्यू है। अगर किसी की वेजेज 15,000 से कम है तो कंपल्सरी आपको उसका डिडक्शन करना होता है। बट किसी की वेजेज अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उसका वॉलंटरली हो जाता है, सब्जेक्ट टू कि वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो पहले से ही 15,000 से ज़्यादा वेजेस ड्रॉ कर रहा है तो उसको आपको आगे भी कंटिन्यू करना है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। क्योंकि जो एम्प्लॉय एक बार पीएफ का मेंबर बन गया, पीएफ की मेंबरशिप कैंसिल नहीं हो सकती। केवल और केवल उसी एम्प्लॉय को एक्सक्लूड किया जा सकता है जिसकी वेजेस 15,000 से ज़्यादा आज है और जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि 15,000 की सीलिंग लिमिट वो कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लिमिट 10 की है, 20 की है। ये मिला कि महाराष्ट्र 20 की है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की लिमिट की बात नहीं कर रहा मैं सर, सीलिंग लिमिट की बात कर रहा हूँ। किस पे कैलकुलेट करना है अब मैं आगे बात करूंगा ये कि किस कोर्स में कितने एम्प्लॉयज पे प्रोविजन है। आगे भी कंटिन्यू है, उसका मैं भी क्लेरिफिकेशन आपको फर्दर डिटेल में बता रहा हूँ। तो अब अगर हम यस बेसिक पकड़ना होता है सर, जिस पे हम पे ऑफ कैलकुलेट करते थे। अब आगे वो आएगा बेसिक पे और रिटर्निंग अलाउंसेस। तो अगर हम डिटेल में बात करते हैं कोर्स की कि क्या हाईलाइट्स है, क्या चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस क्या हैं जो हम लोगों को माइंड में ध्यान रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो बेनिफिट्स की बात करता है, एम्प्लॉइज की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करता है, तो सबसे पहले मैं उसी पे बात करूंगा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसमें हमारे 9 एग्जिस्टिंग एक्ट्स कवर होते हैं। पीएफ, ईएसआईसी, मैटरनिटी ग्रेच्युटी, कंपनसेशन और सब। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर पीएफ एप्लीकेबिलिटी की। पीएफ में पहले शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का केस चलता था, शेड्यूल्ड एस्टेब्लिशमेंट्स का कॉन्सेप्ट चलता था। गवर्नमेंट ने उसको चेंज करते हुए बोल दिया है कि अभी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अगर आपके पास 20 और मोर एम्प्लॉयज है तो उसके केस में कंपल्सरी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, कंप्लाइंस करना है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। फैक्ट्री के केस में एप्लीकेबल होगा क्या, एस्टेब्लिशमेंट्स में होगा क्या नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी दे दी है कि अगर आप चाहे फैक्ट्री हो, एस्टेब्लिशमेंट्स हो या सीए फर्म हो, कुछ भी हो, 20 और 20 से ज़्यादा आदमी आपके पास अवेलेबल है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता था वॉलंटरी, जिसके केस में अगर 20 से कम एम्प्लॉइज हैं उसको वॉलंटरी कवर करवाना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो केस में किया। पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को अपना एग्रीमेंट करना पड़ता था दोनों के बीच में कि हम इस डेट से इफेक्टिवली अप्लाई करने वाले हैं और एग्री करते हैं पीएफ कंप्लायंसेस के लिए। वो कंटिन्यू आगे भी है, वॉलंटरी कवर पहले भी कर सकते थे और आज भी आगे भी कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर 20 की जो सीलिंग लिमिट है वो कंटिन्यू है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लेरिफाई कर दूँ, जो हम लोग को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, हमारे क्लाइंट्स को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, चाहे वो लिस्टेड करें, प्राइवेट लिमिटेड करें, ओपीसी करें, उसके केस में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन साथ में दे दिया जाता है पीएफ और ईएसआईसी का। कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स का भी दिया जाता है, कुछ अदर कंप्लायंसेस भी दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यार सर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन दे दिया, हमारे ऊपर कंप्लायंस उस डेट से इफेक्टिव हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन दिया है बट वो इनएक्टिव मोड में होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ईएसआईसी की,
जैसे ही आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, इनकॉर्पोरेशन डेट से 6 मंथ्स का टाइम आपको मिलता है, अपने क्लाइंट को मिलता है कि वो डोरमेंट पीरियड होता है। अगर उस ड्यूरिंग द पीरियड उसका एम्प्लॉय क्रॉस करता है सीलिंग लिमिट 10 की, तो आपको उसको एक्टिव करना है, उसका कंप्लाइंस करना है। अदरवाइज वो डोरमेंट पीरियड में रहता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। स्टिल 6 मंथ्स बाद भी अगर आपके एम्प्लॉयज क्रॉस नहीं करते 10, तो आपके पास वापस ऑप्शन आता है कि फर्दर नेक्स्ट 6 मंथ्स एक्सटेंड करने का, कि ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद एप्लीकेबल होगा। तो अपने क्लाइंट्स का ये ध्यान रखना है कि जिसके पास भी ESIC का रजिस्ट्रेशन आ चुका है प्राइवेट लिमिटेड के केस में, उसको डोरमेंट पीरियड एक्सटेंड करने का हम लोग ध्यान रखें। अगर हमने बाय द वे डोरमेंट पीरियड एक्सटेंड नहीं किया है, 6 मंथ्स एक्सपायर हो चुका है, तो डिपार्टमेंट ये मान लिया जाता है कि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है और वो एक्टिव हो जाता है, और वो केस में डिपार्टमेंट नोटिस देना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर इम्प्लीकेशंस हो जाता है और यही आगे जाके असेसमेंट्स और डिस्प्यूट्स का केस क्रिएट करता है। ऐसे डिपार्टमेंट नोटिस सेंड कर रहा है जहाँ उनके पास डेटा अवेलेबल है कि ROC में सैलरी आ रही है, फाइनेंशियल में सैलरी आ रही है, पर कंप्लाइंसेस नहीं किया। बाद में हम जाके बोलते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं था। डिपार्टमेंट बोलता है कि आपने एक्सटेंड किया था, तो ये टेक केयर करने वाली बात है। अब मैं बात करूँ PF की, तो PF में क्या होता है कि जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने से पहले आपसे पूछता है कि वेदर यू हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 एम्प्लॉइज और नॉट। अगर क्रॉस हुआ ही नहीं है तो आपको एप्लीकेबल है ही नहीं और एक्टिव करना ही नहीं है आपको। स्टिल आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है वॉलंटरली कवर करने का। तो अगर आप उस जिस दिन से वॉलंटरली कवर करना चाहते हैं एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए, तो वो तो आपके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। तो PF एक्टिव नहीं होता है जब तक कि आप उसको लॉगिन ना करो, और लॉगिन क्रिएट करने के लिए आपको उसमें एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है पर्टिकुलर डेट्स की। जब तक आप डेट नहीं दोगे वो एक्टिव नहीं होता है। तो ये जो मेजर इफेक्ट्स हम लोग फेस कर रहे हैं या क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना लेते हैं, स्टार्टअप्स जो लिमिटेड कर लेते हैं, बट उसके केस में ये कंप्लाइंसेस नहीं कर रहे और नोटिस आ रहे हैं। स्टिल प्रोफेशनल टैक्स के केस में भी ऐसे महाराष्ट्र में भी PT ड्राइव चालू है डिपार्टमेंट्स की, सभी को नोटिस दिए जा रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंस करके स्टिल भी दिए जा रहे हैं। तो ये टेक केयर करने वाली चीज़ है। अब आगे अगर मैं बात करूं कि एस्टैब्लिशमेंट विद लेस देन 20 एम्प्लॉइज टू विच PF प्रोविजंस वर मेड एप्लीकेबल बाय एग्रीमेंट। वॉलंटरली पहले भी कवरेज था, वॉलंटरली आगे भी कवरेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहले यहाँ पर होता था कि यस, the definition of employer has been changed. They have said one or more employee. So in that case, how it is applicable? वन और मोर एम्प्लॉय मतलब वो पर्टिकुलर एक्ट्स की डेफिनेशन भी और उसमें साथ में दिया गया कि सब्जेक्ट को रेफरेंस टू द रूल्स ऑफ द एक्ट। तो रूल्स में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर एक्ट्स के ही लॉज आते हैं। कुछ जो लॉज 20 या 10 डेज के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं, 20 या 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो उसमें एक एम्प्लॉइज के ऊपर लॉस होने पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक के केस में आपके वॉलंटरीज आपने कवर कर लिया, उसके केस में एप्लीकेबल, अदरवाइज नहीं। सेकंड यहाँ पर आता है कि यस, जैसे ही आप लॉगिन करोगे ESIC पोर्टल पे, आपके सामने वहाँ पर स्क्रीन आती है डोरमेंट एक्सटेंड करने का। फर्स्ट 6 मंथ्स तो आपको एक्सटेंड नहीं करना है, 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपको जो एक्सटेंड करना है, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी, तो वो ऑटोमेटिक जैसे आप सबमिट करोगे वो एक्सटेंड हो जाएगा। लॉगिन आप जब एजाइल को फॉर्म फाइल करते हो और उसका जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है साथ में ही आता है लॉगिन क्रेडेंशियल्स। स्टिल अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स अवेलेबल नहीं है तो कोड नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास आता है। फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाइए, अपना कोड नंबर डालिए और मेल ID डालिए, आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। 6 मंथ्स का प्रोविजन उन्होंने डाला, एवरी 6 मंथ्स आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर एक्सटेंड नहीं किया तो वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके पास एक्टिव हो गया, एम्प्लॉइज आपकी कवरेबल नहीं है, 21,000 अबाउट जिसकी सैलरी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्रॉस नहीं हो रहे, तो वो केस में आप नील रिटर्न फाइल करके रखो। आपने डिपार्टमेंट को डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास थ्रेशोल्ड वाले एम्प्लॉइज नहीं है, एप्लीकेबिलिटी वाले एम्प्लॉइज नहीं है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसका रिटर्न भी फाइल नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपने कंप्लायंसेस नहीं किए। आई हैव ए केस वेयर द कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गया, फिर भी नोटिस आपको जा रहा है, तो एम्प्लॉय ट्राई नहीं कंपनी कर, वो आएगा सर, क्योंकि आपने उसको एक्टिव किया है, वो एक्टिव हो गया था, स्ट्राइक आउट हो गया ROC के पोर्टल से, पर डिपार्टमेंट में फिर आपको वहाँ पे लेटर सबमिट करना है कि ये
नहीं तो फिर वो केस में मान जाता है, हो सकता है कि ना माने, अब वो ऑफिसर टू ऑफिसर फिर वो केस डिपेंड करता है। अदरवाइज तो प्रोविजन यही है कि कंपनी बंद हो गया, स्ट्राइक ऑफ हो गया, आप सबमिशन दीजिए, वो केस क्लोज हो जाता है। Must you continue question lastly? सर, ये 6 months वाले ये जो है डॉर्मेंट एक्टिव से ESIC या PF का भी ओनली पीएफ और ESIC पे एप्लीकेबल है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन साथ में पीएफ ESIC और महाराष्ट्र पीटी का ही आता है। अदरवाइज साथ में रजिस्ट्रेशन पेन 10 का आता है तो उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ऑप्ट आउट की अगर हम बात करें कि अगर आपने वॉलंटरी कवर किसी एम्प्लॉयज़ को कर लिया, एम्प्लॉयर एग्रीमेंट का कवर कर लिया, तो आप क्या एक बार रजिस्ट्रेशन ले जाकर उसको बंद नहीं कर सकते, वापिस उसको क्लोज किया जा सकता है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एग्रीमेंट कीजिए, एम्प्लॉयज़ अगर एग्री करते हैं कि हाँ पीएफ डिसकंटिन्यू कर दो, हमें नहीं कटवाना, तो आप वापस उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो वॉलंटरी कवरेज कैन ऑप्ट आउट बाय एग्रीमेंट, ये भी उन्होंने यहाँ पर डाल दिया है कि ऑप्ट आउट आप अगेन कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ESIC के केस में, तो ESIC के केस में क्या होता था, नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट चलता है। गवर्नमेंट ने हर स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स नोटिफाई कर रखे हैं, वहाँ पर ESIC कंपल्सरी एप्लीकेबल है। जो नॉन नोटिफाइड एरिया था वहाँ पर ESIC एप्लीकेबल नहीं होता था, डिस्प्यूट्स था। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट खत्म, यूनिवर्सली सबके ऊपर एप्लीकेबल है। आप फैक्ट्री हो, एस्टेब्लिशमेंट्स हो, शॉप हो, कुछ भी हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपके पास 10 और मोर एम्प्लॉइज है, कंपल्सरी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अदरवाइज वॉलंटरी का कॉन्सेप्ट पहले ESIC में नहीं था। वॉलंटरी मतलब मिनिमम अगर आप हमको रजिस्ट्रेशन लेना है तो मिनिमम 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम लोगों को शो करने पड़ते थे। वो अभी उन्होंने चेंज करते हुए बोल दिया कि वॉलंटरी कवरेज भी आप ले सकते हो, अगर बिलो नंबर ऑफ 10 एम्प्लॉइज है तो वॉलंटरी कवरेज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चेंजेज हैं कि अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो या आपका क्लाइंट ऐसा है जो हजार्डियस है, तो उसके केस में वो 10 की लिमिट ना एप्लीकेबल होगी, सिंगल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आपके पास एक भी एम्प्लॉय है हजार्डियस इंडस्ट्री वाला, तो आपको ESIC का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो हमारे सामने यही अपॉर्चुनिटीज है, एज ए CA हम अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। आज तक हॉस्पिटल्स के केस में, डिस्पेंसरी के केस में और जो भी नर्सिंग होम्स है, इन पर ESIC एप्लीकेबल नहीं था, बिकॉज वो खुद हॉस्पिटल है। डिपार्टमेंट ने उसको भी कवर कर लिया है कि ESIC उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। उनके जो भी कोड नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आ गए थे, ROC के टाइम पे, डिपार्टमेंट ने सारे रजिस्ट्रेशन उनके कैंसिल कर दिए, वो कोड इनएक्टिव कर दिए हैं। नया रजिस्ट्रेशन उन लोगों को वापस लेना पड़ेगा, न्यू कवरेज न्यू कोड के हिसाब से। तो हमारे जो भी हॉस्पिटल क्लाइंट्स हैं, नर्सिंग होम क्लाइंट्स हैं, डिस्पेंसरी क्लाइंट्स हैं या डॉक्टर क्लाइंट है, उनके क्लाइंट में हम लोग पिच कर सकते हैं, सर आपको ESIC कवरेज करना पड़ेगा। और कंपल्सरी डिपार्टमेंट ने इंटीमेशन देना स्टार्ट कर दिया है कि न्यू कोड के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन लो। These are the changes in the ESIC and PF रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेट में कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले एप्लीकेबल था वही सेम आगे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कंपनसेशन। अगर किसी को बेनिफिट पहले ESIC में मिल जाता था तो उसको एम्प्लॉय कंपनसेशन में नहीं मिलता था। डिपार्टमेंट ने उसको क्लेरिफाई कर दिया कि नहीं, दोनों कोड सेपरेट है, एक में अगर कवर हो गया तो दूसरे में भी होगा, ऐसा नहीं कि एक में हो गया तो दूसरे में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट की डेफिनेशंस थी उन्होंने चेंज करते हुए सारा का सारा सेंट्रलाइज कर दिया है कि जहाँ भी गवर्नमेंट रेफर की जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफर किया जाएगा, स्टेट्स का उसमें कोई रोल नहीं होगा। और ये सारे एक्ट्स में सेम एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर आपका डिस्प्यूट्स खत्म हो जाता है। आगे मैं बात करूँ BOCWCS की, जो कंस्ट्रक्शन लाइन के क्लाइंट हैं, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल्स है, पहले भी एप्लीकेबल था, आगे भी कंटिन्यू है। इसका स्कोप थोड़ा उन्होंने वाइडन कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टावर बना रहा है, इंटरनेट टावर बना रहा है, अब उसके केस में भी ये एप्लीकेबल है। पहले जो सिविल का काम करता था, स्ट्रक्चर का काम करता था, BOCWCS उसके ऊपर ही एप्लीकेबल था, उसको रजिस्ट्रेशन लेकर सेस 1% भरना पड़ता था। अभी उन्होंने आगे उसको क्लेरिफाई कर दिया है कि नहीं, जो इंटरनेट टावर्स का काम कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। फिर उन्होंने आगे उसमें फर्दर क्लेरिफाई किया कि किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जो रेजिडेंशियल वाले हैं उनका जैसे ही हम लोग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेते हैं कंस्ट्रक्शन करवाने की, तो वहाँ पे उन्होंने उसके बेसिस पे इंटीमेशन देना स्टार्ट कर दिया कि आपने BOCWCS नहीं भरा। तो उन्होंने उसको यहाँ पर चेंज बोल दिया है कि अगर कोई ऐसा है जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आपने कंस्ट्रक्शन किया है और उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए से कम है, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, BOCWCS आपको उस केस में नहीं भरना है।
और ऐसा एस्टैब्लिशमेंट्स जिसके केस में 10 और 10 से कम एम्प्लॉइज है तो उसके केस में भी BOCW सेस एप्लीकेबल नहीं है। 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज अगर उसके पास है उसी केस में BOCW सेस एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज़, फैक्ट्री के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक बार अगर फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री लाइसेंस अगर मिल गया तो ऑपरेशनल का लाइसेंस मिल जाता है, BOCW का वहीं रिलेवेंस खत्म हो जाता है। BOCW सेस है जब तक कि उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई पर्टिकुलर चीज़ हम लोग बना रहे हैं, तो जैसे ही फैक्ट्री का लाइसेंस मिल गया, फैक्ट्री चेक में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद उसका रिलेवेंस खत्म हो जाता है, तो BOCW सेस वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्डिंग वर्कर के केस में कुछ एक्सक्लूजन उन्होंने दिए हैं कि जो सुपरवाइजर कैपेसिटी में काम कर रहा है। अब सुपरवाइजर कैपेसिटी मतलब क्या, जिसकी वेजेज 18,000 रुपये या उससे ज़्यादा है वो लोग यहाँ पर कवर नहीं होंगे, उससे बिलो जो एम्प्लॉइज हैं वही लोग यहाँ पर कवर होंगे। ग्रेजुटी में उन्होंने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट खत्म करके डेफिनेशन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का कर दिया। 1 ईयर रिप्लेस्ड विद 12 मंथ्स इन द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज के केस में। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की डेफिनेशंस भी यहाँ पर थोड़ी चेंज कर दी गई है कि जो भी आप उससे जनरेट कर रहे हो, आपके यहाँ पर सर्विसेज दे रहा है, वो सारे लोग यहाँ पर कवर हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट्स के केस में यूनिफॉर्म डेफिनेशंस दी गई है सारे एक्ट्स में। पहले ग्रेजुटी के हिसाब से अलग था, मैटरनिटी के हिसाब से अलग था, PF में अलग था, ESIC में अलग था। अब यूनिवर्सल डेफिनेशंस उन्होंने दे दी है क्योंकि वो एप्लीकेबिलिटी सभी के ऊपर उन्होंने करवा दी है। फैमिली की डेफिनेशंस भी यहाँ पर चेंज हो गई है। ग्रैंड पेरेंट्स, सास ससुर, विडो डॉटर, उन सबको उन्होंने कवर कर दिया है, तो इसका स्कोप वाइडन हो जाएगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटीज की बात की गई है। गिग और प्लेटफॉर्म्स का मैं आप ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि उसके केस में 12% कॉन्ट्रीब्यूशन, 4% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उसके केस में एग्रीगेट टर्नओवर का 1 to 2% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। डिपार्टमेंट एक फंड बनाएगा, गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट करेगा, उस फंड में कंपनीज को कॉन्ट्रीब्यूशन देना है और उसी के बेसिस पर एम्प्लॉइज का सोशल सिक्योरिटी चलेगा। इनका एक कार्ड जनरेट होगा, आधार के थ्रू वो कार्ड चलेगा, उसी के बेसिस पर उस गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स मतलब जो जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी पार्टनर्स का काम कर रहा है, चाहे मीशो का हो, और प्लेटफॉर्म वर्कर्स मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहा है, कंटेंट क्रिएटर है, तो उसके केस में ये कवरेज है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग के माइंड में आ रहा है कि यार वेजेस में क्या, तो वेजेस की डेफिनेशन ही उन्होंने यहाँ पर चेंज करी है कि आपका जो भी CTC स्ट्रक्चर है उसका 50% बेसिक DA रिटेनिंग अलाउंसेज में रखना कंपल्सरी है। अब यहाँ पर क्या बेसिक DA रिटेनिंग अलाउंसेज तीनों में रखूँ या 50% ओनली बेसिक में रखूँ, तो यहाँ पर अलाउड है कि आप किसी भी कंपोनेंट में रख सकते हो 50%, बट वो 50% कम नहीं होना चाहिए। आइदर आप उसको सेग्रीगेट करो बेसिक DA रिटेनिंग अलाउंसेज में, या 50% पूरा बेसिक में रखो, बट आपको 50% रखना कंपल्सरी है। कुछ एक्सक्लूजन्स उन्होंने दिए हैं कि आप जब बाकी का अमाउंट रखोगे, ये एक्सक्लूजन्स में आप रख सकते हो, क्योंकि कंपनीज में CTC कॉन्सेप्ट चलता है। किसी एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए पर हायर किया, उसको हम सेपरेट कंपोनेंट देते हैं कि बेसिक दे दिया, एनुअल बोनस दे दिया, ग्रेजुटी दे दिया, उसमें उसका PF और ESIC भी साथ में कवर होता है कि वो एम्प्लॉय के पार्ट में ही होता है। तो जो ये एक्सक्लूजन्स उन्होंने लिस्ट दी है, ये एक्सक्लूजन्स 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सक्लूजन अमाउंट 50% से ज़्यादा है, अगेन वो जो एक्सेस अमाउंट है वो वापस आपकी बेसिक में ऐड हो जाएगा और आपको कंप्लायंसेस उस पर ही करना पड़ेगा। एक्सक्लूजन्स की लिस्ट दी है, बेस्ट बोनस, कोई भी फैसिलिटीज, आप कार फैसिलिटी दो, हाउस की फैसिलिटी दो, EPF ESIC कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, कन्वेंस अलाउंसेज हो गया, किसी भी टाइप का अदर अलाउंसेज हो गया, HRA हो गया, अवार्ड हो गया, बोनस हो गया, कमीशंस हो गया। दो चीज़ें यहाँ पर कवर नहीं करनी है कंप्लायंस कैलकुलेट करते टाइम, ग्रेजुटी और लिव इन्वेस्टमेंट्स की। यहाँ पर दो चीज़ें मार्केट में चल रही है, हम लोग जनरली फॉलो जो करते हैं, टोटल CTC का 50% सीधा लगा रहे हैं बेसिक वेजेज में। डिपार्टमेंट ने उसमें उनके एक्ट के हिसाब से बोलना है कि A2I में जो हमने दिया है, A2I दैट मीन्स द ग्रेजुटी और लिव इन्वेस्टमेंट्स के अलावा जो अमाउंट बचेगा उसका 50% आपको करना है, क्योंकि ग्रेजुटी और लिव इन्वेस्टमेंट डे 1 पे कवर नहीं होती, वो कवर होती है उसको सर्विस कंप्लीट करने के बाद। तो बाकी का जो ये एक्सक्लूजन है A2I का 1 से लेकर 9 तक का, यही एक्सक्लूजन में कवर होंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 50% बेसिक DA रिटेनिंग अलाउंसेज में रखना कंपल्सरी है। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो वापस एड बैक हो जाएगा और जो पीनल प्रोविजन है, जनरल पीनल प्रोविजन 10,000 से लेकर 50,000 तक के वो एप्लीकेबल होंगे। इसके मैं एक फॉर्मूला के माध्यम से आपको एक एग्जाम्पल। रिटेनिंग अलाउंसेज मतलब
आपको किसी एम्प्लॉय को रिटेन करना है, उसके बेसिस पे उसको ज्वाइनिंग बोनस दिया तो ज्वाइनिंग बोनस दिया तो ज्वाइनिंग बोनस कंपनी वो बोनस में कवर होगा। ज्वाइनिंग बोनस, दिवाली बोनस, पूजा बोनस, किसी भी टाइप का बोनस दो वो बोनस में कवर होगा। सर आप बोले जो बोनस पेड अंडर एनी लॉ, ये तो ज्वाइनिंग बोनस इज नॉट पेड अंडर एनी लॉ। हाँ, ज्वाइनिंग बोनस किसी लॉ के अंदर नहीं आता है, बट अगर आप किसी एक्स में अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एम्प्लॉइज के केस में क्या होता है, कंपनी सीटीसी पे हायर करती है तो उसको एक्स्ट्रा कोई बोनस नहीं देती है कंपनी, उसी का उसका सब कुछ आ गया, चाहे बोनस हो या किसी भी प्रकार की एम्यूलमेंट्स हो। तो वो केस में अगर उसको बोनस एक्स्ट्रा कंप्लायंसेज है तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दिवाली बोनस, पूजा बोनस या किसी भी टाइप में आपने बोनस फॉर्म में उसको अमाउंट दिया है एक्स्ट्रा, तो वो उसमें कवर हो जाता है। सर वो बोल रहे हैं ज्वाइनिंग बोनस एक ही बार पे होता है। हाँ, ज्वाइनिंग बोनस स्पेसिफिक है, वो बोनस नहीं है एक्चुअली। तो वो आपका सीटीसी का पार्ट है ही नहीं ना सर। यहाँ पर बोनस दिया है जो एनुअल टाइम पे आप दोगे, अवार्ड के टाइम पे आप दोगे। कंपनसेशन तो हो गया ना एम्प्लॉय का, तो सर 25 लाख ज्वाइनिंग बोनस पे किया किसी को, वो तो सीटीसी पे तो वन टाइम है। लेकिन ये वन टाइम है तो जो वन टाइम कॉस्ट है उसको रिस्ट्रक्चरिंग में कवर नहीं करना है। यहाँ पर जो है सीटीसी कॉन्सेप्ट वो मंथ और मंथ आप उसको जो एम्यूलमेंट्स देने वाले हो, जो उसका स्ट्रक्चर है फिक्स, उसको कवर करना है। नहीं तो वो वही पूछ रहे हैं कि 50% आप बोल रहे हो मिनिमम उसको अमाउंट आपको ग्रेचुइटी, लीव एनकेसमेंट्स और बोनस जो भी आपका वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस है उसको एक्सक्लूड करके जो अमाउंट बचेगा उसका 50% आपको कवर करना है। क्योंकि अगर आपने वन टाइम कवर कर दिया उसको, वन टाइम की ज्वाइनिंग बोनस को ही कवर कर दिया, उसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो सिंगल टाइम का पेमेंट है। ये मोस्टली कॉर्पोरेट्स फॉलो करती है, IT सेक्टर्स फॉलो करती है ज्वाइनिंग बोनस का। वैसे उनका पैटर्न में चेंजेस होने वाला है। ज्वाइनिंग बोनस वो लोग भी प्रेफर अब कम कर रहे हैं क्योंकि वो केस में उनको देना ही पड़ जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। PF जो होगा 50% पे होगा अभी। हाँ, 50% पे PF भी, ESIC भी, ग्रेचुइटी भी, लीव एनकेसमेंट भी सभी 50% पे होंगे। बट यहाँ पर ये है कि 15,000 की सीलिंग लिमिट की आज भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि 50% अमाउंट डिसाइड कर दिया तो PF का अमाउंट मेरा ज़्यादा हो जाएगा, वॉलंटरी आप ज़्यादा करो, कोई इशू नहीं है। बट जो सीलिंग लिमिट है 15,000 की 12% 1,800 रुपये वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा करने की गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं। ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो 50% वाला है लाख रुपये 1 लाख, हाँ, तो PF की आप 15,000 पे ही करो। नहीं हो सकता। आपको बेसिक तो 50,000 रुपये डिसाइड करनी है, PF तो आप 15,000 रुपये करोगे ना सर। वहाँ पे जब हम PF रिटर्न फाइल करते हैं 4 चीज़ आती है। ग्रोस वेजेस, तो ग्रोस वेजेस में आपको टोटल दिखानी है। देन आपकी आती है EPF वेजेस, तो आप जिस अमाउंट पर PF डिडक्ट कर रहे हो, अगर आप 50 पे कर रहे हो तो 50 दिखाओ, अगर आप 15 पे कर रहे हो तो 15 दिखाओ, तो वो EPF की वेजेस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जब एम्प्लॉय का रिस्ट्रक्चरिंग करोगे सैलरी, तब तो आपको बेसिक 50,000 ही लगती है, बट आपको 15,000 अगर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, 15,000 में ही कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, दैट इज ऑप्शन अवेलेबल। वो रिटर्न का फॉर्मेट पहले भी था और आगे भी कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि वहाँ पर EPF वेजेस हम लोग को दिखानी होती है रिटर्न के टाइम पर। नेक्स्ट इज द एग्जांपल कि अगर मान लीजिए किसी की बेसिक 15,000 है, 6,000 रुपये उसका DA है, रिटेनिंग अलाउंसेस 1,000 रख दिया, यहाँ पर उसका 22,000 रुपये बनता है। 40,000 रुपये मैंने किसी भी नाम से रख दिया, बोनस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज हो गया या किसी भी नाम, टोटल मेरा यहाँ पर 62 बनता है। न्यू कोड के हिसाब से मेरा 31,000 रुपीज़ बेसिक DA रिटेनिंग अलाउंसेज में जाना चाहिए और अदर अलाउंसेज में 40,000 रुपये में रख रहा हूँ, जबकि मेरी तो लिमिट ही 31,000 की है। तो 9,000 रुपये जो मैं एक्सेस रख रहा हूँ वो 9,000 रुपये वापस एडबैक होंगे मेरे मिनिमम बेसिक अमाउंट में, बेसिक DA रिटेनिंग अलाउंसेज में, और मुझे कंप्लायंसेज उस 31,000 रुपीज़ में करना पड़ेगा, ना कि 22,000 रुपये पे। तो एक्सक्लूजन्स पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके एक्सक्लूजन्स किसी भी कंडीशन में 50% से एक्सीड ना करें। पहले बिजनेस क्लोज हो जाता था, हम लोगों को सरेंडर करना थोड़ा सा टफ होता था, डिपार्टमेंट एग्री नहीं करता। अभी अगर आपने बिजनेस क्लोज कर दिया है, आपके पास प्रूफ है, तो आप जाइए डिपार्टमेंट में क्लोज कीजिए, PF ESIC जो भी आपके रजिस्ट्रेशन है आप उसको क्लोज कर सकते हो और इजीली सरेंडर आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि इजीली आप सरेंडर कर सकते हो। फंड्स की कोई रेट में चेंजेस नहीं है, बेसिक DA रिटेनिंग अलाउंसेस सेम है, 12% उस पर होगा और वो रेट में कोई चेंजेस नहीं है। प्रायोरिटीज दे दी गई है पेमेंट्स की कि अगर आप लिक्विडेशंस में जा रहे हो, कंपनी स्ट्राइक आउट में जा रहे हो, तो गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज हैं, PF ESIC, ग्रेचुइटी, बोनस जो भी एप्लीकेबल है डिपार्टमेंट के, वो ड्यूज को प्रायोरिटी होगी। पहले डिपार्टमेंट को उनको क्लियरेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही NCLT की परमिशन लेनी पड़ेगी। रिसेंटली हम लोग ऐसे केसेस हायर कर रहे हैं जहाँ पर NCLT में केस फाइल नहीं हो पा रहा, जब तक कि PF और ESIC की डे 1 से लायबिलिटी और अगर इंटरेस्ट भी कुछ ड्यू है वो क्लियर नहीं हो जाता, उसका सरेंडर नहीं हो जाता, तब तक डिपार्टमेंट ने क्लोज करना बंद कर दिया, NOC देना डिनाई कर दिया है।
ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स का मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सारे प्रोविजन जो भी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में उनके रूल्स अलग है, सेपरेट है, वो उनके जो एग्जिस्टिंग रूल्स है वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स एक एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करते थे, बाद में दूसरे में चला गया, तीसरी कंपनी में चला गया, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा टफ होता था कि उसका ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ को अप्रोच करना पड़ता है HR डिपार्टमेंट को, या एम्प्लॉयज़ को अप्रोच करना पड़ता है कंसल्टेंट को। अभी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम सारा का सारा फेसलेस सिस्टम कर रहे हैं। आजकल यूएन भी जो जनरेट होता है फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू जनरेट होता है। अगर आपका आधार प्रॉपर मैच है तो फेस ऑथेंटिकेशन से यूएन जनरेट हो रहा है, और उस केस में आप कितने भी एम्प्लॉयमेंट चेंज कर दो, कितनी भी कंपनीज चेंज कर दो, आपका ऑटोमेटिकली ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में आपका बैलेंस चला जाएगा, आपको रिक्वेस्ट डालने की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ट्रिब्यूनल के केस में थोड़ी सी यहाँ पर चेंजेस किया गया है कि पहले ओनली जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन थे वही अपील फाइल कर सकते थे, अभी यहाँ पर जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो PF ESIC के हो, किसी के भी हो, वो भी अपील फाइल कर सकते हैं। डिपॉजिट जो उनको होती थी डिस्प्यूटेड अमाउंट की 75% की उसकी लिमिट थी, उसको चेंज करते हुए उन्होंने उसको 25% कर दिया है। डिपार्टमेंट के राइट्स है कि अगर आपने कोई ड्यूज बाकी है और जमा नहीं करे हैं, एम्प्लॉय से कट कर लिया, तो डिपार्टमेंट के पास राइट्स है कि वो आपसे रिकवर कर सकती है। स्कीम्स आगे गवर्नमेंट बनाने जाने वाली है, इसके लिए सेपरेट फंड बनेगा, इनके लिए स्कीम्स बनेगी, इनके प्रोविजन सेपरेट होंगे, इसका फर्दर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, तो ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स उसमें कवर हो जाएंगे। ग्रेजुटी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुटी जो परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में एप्लीकेबल था, 5 इयर्स का प्रोविजन, 5 इयर्स का केस वो सेम है, उसके केस में कोई चेंजेस नहीं है। जो कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉयज हैं, कंपनी की पेरोल पे काम कर रहे हैं, उसके केस में 5 इयर्स का प्रोविजन था, 5 इयर्स आगे भी कंटिन्यू है। ग्रेजुटी का जो चेंजेस दिया गया है, इफेक्ट दिया गया है, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को दिया गया है, दैट आर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज। मिनिमम अगर किसी ने 1 ईयर सर्व किया है तो वो ग्रेजुटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, FTEs। बट कोई काम ऐसा है जो 1 साल के पहले भी खत्म हो सकता है, 30 डेज में, 6 मंथ्स में, तो आपको प्रो राटा ग्रेजुटी वहाँ पर भी देनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट का हमारा जो गाइडेंस नोट आया है, यहाँ पर यही आया है कि Q3 के फाइनेंशियल्स और Q4 के फाइनेंशियल्स में अपना इसका ग्रेजुटी का और लिव एंगेजमेंट्स का प्रोविजन दें, इफेक्ट्स दें, एक्चुअल पोजीशन पता लगनी चाहिए, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज है वो इंटरिम फाइनेंशियल्स इशू करती है, फाइनल फाइनेंशियल्स ईयर एंड के बाद पब्लिश होते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप Q4 के फाइनेंशियल्स में सारा इफेक्ट दे दें। Q3 के फाइनेंशियल्स में भी ग्रेजुटी और लीव एंगेजमेंट्स का प्रोविजन आना चाहिए। आपको पता लग गया कि FTEs के केस में ग्रेजुटी एप्लीकेबल है, वेजेस की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, तो आप अपनी प्रोविजनिंग चेंज करिए, ग्रेजुटी के एजम्पशंस चेंज करिए, और जो कॉस्ट है उसको पास्ट कॉस्ट मेथड बेसिस पे सेम टाइम पर P&L में उसका इफेक्ट दीजिए। उसकी जो भी प्रोविजनिंग आपको अपने फाइनेंशियल्स में करनी है वो करनी है। तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो इंटरिम फाइनेंशियल्स इशू करती है, उसके केस में Q3 और Q4 के फाइनेंशियल्स में कंपल्सरी एप्लीकेबल है। ईयर एंड पर या 1 अप्रैल से ये 100% एप्लीकेबल होने वाला है। तो जो अदर एस्टैब्लिशमेंट्स है, अदर कंपनीज है, नॉन लिस्टेड है, उसके केस में तो वो इफेक्ट ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास तब तक क्लियरिटी हो जाएगी कि ये एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल है। तो Q4 के फाइनेंशियल्स में वहाँ पर एप्लीकेबल है ही सही। ये तो FTEs की जो ग्रेजुटी है वो कंपनीज को अपनी बुक्स में ध्यान रखनी है, और उसका अपना P&L में इफेक्ट और फाइनेंशियल्स में कहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन होना है, उसी के यहाँ पर गाइडेंस उन्होंने इशू कर दिया। साथ में 7 दिन पहले अभी इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट आया लेबर कोड्स पे कि आप अपने क्लाइंट्स की ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखने हैं, क्या आपको मेजर ऑडिट्स में कवरेबल होना चाहिए, क्या आपको उसमें हाइलाइट्स देने हैं। तो गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर फर्दर क्लेरिफाई कर दिया है कि माना कि एक्स एप्लीकेबल नहीं है, बट जो प्रोविजन एप्लीकेबल है ग्रेजुटी और ESIC के साथ में जो ट्रांजिशनल पीरियड्स है, इस ट्रांजिशनल पीरियड्स में मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया है, सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट के फॉर्मेट्स क्या होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर्स क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स उनके फाइनेंशियल्स में क्या होंगे, मैनेजमेंट ने क्या आपको रिप्रेजेंटेशन दी है, वो सारे आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है। इंस्टीट्यूट ने ये फर्दर क्लेरिफाई कर दिया है कि गाइडेंस नोट का ध्यान रखना कंपल्सरी है, क्योंकि कोड्स एप्लीकेबल नहीं है। कोड्स जब एप्लीकेबल हो जाएंगे उसका इफेक्ट्स फाइनेंशियल्स में अल्टीमेट बहुत बड़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके एकदम हिट मारे या Q4 के फाइनेंशियल्स में जाके हिट मारे, इसी के पहले आपको अपने क्लाइंट्स के बुक्स और अकाउंट्स में जब ऑडिट करते टाइम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को ध्यान रखनी है, और गाइडेंस नोट इसलिए इशू किया गया है कि आप उस पर ध्यान दें। बट 50% वाला में तो कोई स्ट्रक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर? 50% वाले में कोई
स्ट्रक्चरिंग 50% के तो करना ही है। करना ही है, बेसिक डे रिटेनिंग अलाउंसेस में रखना है। कोई आइडिया नहीं है, कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं है। नहीं, उसमें 3 अमाउंट दे देंगे, बेसिक डे रिटेनिंग अलाउंसेस में रखो, अगर नहीं करते तो बेसिक 50% में तो आपको करना ही है। करना ही है सर, करना ही है। पहले भी कुछ स्टेट्स और कुछ कॉर्पोरेट्स फॉलो करते थे बेसिक 50% का फॉर्मूला। कंसल्टेंट के पास भी कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, कंसल्टेंट के पास भी कोई रास्ता नहीं है। Can you change now? Suppose अभी 15 can I do the change 15,000 तक ये भी रखता हूँ henceforth going forward. सॉरी, ये जो 50% का आया किसी का, जो कि मेरा 1 लाख है तो मेरा कितना 12,000 अभी हो रहा था, इसको मैं बेसिक में 15 करके कंट्रीब्यूशन बेसिक 1 सर लाख। केवल आपको पीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं रखना, ग्रेजुटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर वेजेस डिसाइड करनी है, लिव एंगेजमेंट के लिए भी डिसाइड करनी है। पीएफ में हम 15,000 कर सकते हैं, बट बाकी ग्रेजुटी और लिव एंगेजमेंट के लिए तो जो मिनिमम रेट है वो रखना ही पड़ेगा। तो आप वो 1 लाख रखता हूँ। वही बोल रहे हैं, इधर स्कोप पे उधर कर सकते हैं, वो पूछ रहा है। कर सर, वो तो आप जब सैलरी अपॉइंटमेंट लेटर दोगे, किसी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर दोगे, उसमें 50% लिखना नहीं, कंप्लायंसेस के टाइम पे आपको चेंज करना है वो अमाउंट, बट उसके फेस पे अपॉइंटमेंट लेटर पे तो 50,000 लिखना चाहिए, 50% अमाउंट लिखना चाहिए। नहीं, उसमें ऐसा लिख सकते हैं PFFP के मतलब 50,000 हम लिख सकते, उसमें डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आज की तारीख में मेरे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जा रहा है। हाँ, आज की तारीख अभी मैं कह रहा हूँ हैव अ राइट टू चेंज दैट, रिड्यूस दैट अमाउंट। यस कर सकते हो सर। गवर्नमेंट की जो लिमिट है, उनका जो वॉलेंट्री कवरेज है वो 15,000 पे ही है, उसके ऊपर वो वॉलेंट्री है, तो वॉलेंट्री को आप रिड्यूस कर सकते हो। एम्प्लॉय अगर आपका एग्री करता है कि नहीं मेरा अमाउंट रिड्यूस, क्योंकि अभी एम्प्लॉय को बेनिफिट था, दोनों साइड का कॉन्ट्रीब्यूशन उसको हायर मिलता है, अभी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसको कम मिलेगा, तो उसके केस में उसको लॉस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय एग्री करता है आप उसको कम कर सकते हो, बट इसकी जो लिमिट है 15,000 की वो ध्यान रखनी है। सर सिटी से कंसेप्ट है, बुझो सिटी से कॉन्सेप्ट से तो फिर एम्प्लॉय अगर एग्री करता है दैट्स ऑल। यहाँ पर जो भी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है एम्प्लॉयज को भी ध्यान में रखनी है, उनकी अप्रूवल लेना, उनको समझाना, उनको ट्रेनिंग देना, इज ऑल्सो कंपल्सरी। ओनली टेक होम कम हो जाएगा, तो ये सब टेक होम कम हो जाएगा। टेक होम कम हो जाएगा। दूसरा ग्रेजुटी में कंपनी ईयर का अभी आ गया, पहले 12 महीना था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ जो पहले 2 महीना 5 महीना 5 साल 7 महीना देखिए 6 महीना कंसिडर कर रहे थे, तो अभी 5 महीना ही कंसिडर हो रहे हैं, 6 साल पूरा साल कंप्लीट से होगा सर, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपके ऊपर यही बोला कि यहाँ पर जो ग्रेजुटी का प्रोविजन था कंप्लीटेड ईयर्स का, completed year of service, section 270, 1 year replaced with 12 months in the definition of completed year of service। मतलब यहाँ पर उसने completed कितना months complete किया है उसके बेसिस पे ही माना जाएगा। मतलब अगर उसने 5 महीना कंप्लीट किया है तो 5 महीने का एप्लीकेबल होगा। पहले हम केस में 7 या उससे ज़्यादा करते थे, पूरा 12 महीने का कवर करते थे, अभी यहाँ पर नहीं होगा, प्रो राटा हो गया है। यस, HG और लीव को एक्सक्लूड करना है। I was in the company which I know, in the appointment letter, though they is not applicable to the employee, they are including in the CTC structure. तो CTC में include कर देते, तो अगर पहला joining date है, उसी में डाल देते हैं, भले ही applicable है। बराबर, इस केस में तो एक्सक्लूड नहीं होगा, उसके लिए सपोज टोटल फिटिंग 100 हो गया है, 1 लाख हो गया है। वहाँ पर आप उसका जब रिस्ट्रक्चरिंग करोगे 50% का, तब आपको ग्रेजुटी और लिविंग इंगेजमेंट अमाउंट हटा के बाकी जो अमाउंट है उसका रिस्ट्रक्चरिंग करना है। तो मैं बोल रहा हूँ ग्रेजुटी में वो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी, वो CTC में डाल दिया है। आज ग्रेजुटी देना कंपल्सरी 1 साल या 5 साल के बाद एप्लीकेबल होगा, पहले 5 साल या 1 साल हो। बाद में एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, मैं उसको दे रहा हूँ 1 लाख रुपये, बराबर, उसमें ग्रेजुटी सपोज 10,000 डिफरेंट किया उसमें इंक्लूड ग्रेजुटी, उसमें एक्सक्लूड ग्रेजुटी सर कंपनी समझ रही है कि आप 5 साल कंटिन्यू करोगे, वो आपका डिसीजन है, आपको 5 साल के पहले छोड़ रहे हो, Good जो right. थिंकिंग करते हैं। Can request them to take questions ठीक later. है, We are क्वेश्चन very आंसर less. हम लोग लास्ट में ले लेंगे क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी हमारा होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि परमानेंट एम्प्लॉय में कोई चेंजेस नहीं है, उसमें सेम रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके केस में 5 साल की जगह 3 साल कर दिया है कि उनका जो सर्विस पीरियड रहेगा 3 साल माना जाएगा। दूसरा जो सीलिंग लिमिट है 3.5 लाख की होती थी, उसकी जगह उन्होंने चेंज करते हुए 10 लाख और 20 लाख जो भी इनकम टैक्स की लिमिट है उसके हिसाब से रहेगा, 3.5 लाख की सीलिंग लिमिट हटा दी है। बाकी चेंजेस कोई नहीं है, कैलकुलेशन वही की रहेगी, 15/26 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी।
उसमें और कोई चेंजेस नहीं है। मटर्निटी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एवरेज डेली वेजेस को चेंजेस कर दिया गया है, उसके फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस है। और बाकी जो वुमेंस को था एप्लीकेबल मटर्निटी बेनिफिट्स एप्लीकेबल वो 26 वीक्स का था, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक और चेंजेस है कि अगर कोई वुमन लीव पे जानी है, मटर्निटी बेनिफिट्स के प्रोविजंस एप्लीकेट करना चाहती है, तो उसको पहले यहाँ पर मैक्सिमम 8 वीक्स नोटिस बाय प्रेग्नेंट वुमन सेल क्लेम मटर्निटी लीव बेनिफिट्स ऑफ मैक्सिमम 8 वीक्स अप टू द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। पहले 6 वीक पहले बोलना पड़ता था, अभी कम से कम उसको 8 वीक पहले, 2 महीना पहले कंपनी को बोलना पड़ेगा कि मेरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, उसके हिसाब से उसका कंसिडरेबल होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो मटर्निटी के बोनस था उसको अमाउंट को उन्होंने एनहांस कर दिया है। 1000 रुपीज़ पर मंथ था, उसको 3500 रुपीज़ कर दिया है। और उसकी जो हायर कैपिंग लिमिट थी 20,000 रुपीज़ की, उसको चेंज कर दिया उन्होंने कि ये अभी यहाँ पर कुछ नहीं रहेगी, आप कितना भी उसको दे सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूँ क्रेच फैसिलिटी की, जिस कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 50 या उससे ज़्यादा है उनको कंपल्सरी क्रेच रखना रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट आगे भी कंपल्सरी है। उसमें रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया, रिलैक्सेशन ऐसे दिया है कि जो क्रेच फैसिलिटी है कंपनी खुद बनाए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो नियर बाय 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की जो रेडियस है उसमें अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या किसी एनजीओ का या किसी प्राइवेट कंपनीज का भी कोई अगर पूल्स है, कोई क्रेच फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप उसके साथ पूलिंग कर सकते हो, उस पूल का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि क्रेच फैसिलिटी कंपनी को ही रखना कंपल्सरी नहीं है, वो पूल भी उसमें कर सकती है। नोटिस और क्लेम जो भी होंगे सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आने वाले हैं। डिपार्टमेंट का वही वर्चुअल मोड पे जाने का कॉन्सेप्ट है कि फैसले सब लोग इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। यहाँ पर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर उन्होंने उनका नाम दे दिया है कि अब कोई इंस्पेक्टर नहीं होगा, कोई आपसे घूसखोरी नहीं की जाएगी। सब्जेक्ट टू आगे देखते हैं होता क्या है, बट उन्होंने बोला है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रहेगा, वो आपको गाइड करेंगे कि आपकी कंप्लाइंसेस में क्या कमी है, आपको क्या और करने की रिक्वायरमेंट है। तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होने जाने वाला है। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूं सेस के केस में, तो थोड़ा ऐसा यहाँ पर डिस्प्यूट था कि कुछ गवर्नमेंट कैसे कवर करती है, कुछ स्टेट कैसे कवर करते हैं। उन्होंने सेस को चेंज करते हुए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस में क्लेरिफिकेशन दिया है कि विच क्लेरिफाई द नॉट इंक्लूड, क्या यहाँ पर कवर नहीं किए जाएंगे। जब आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेंगे BOCW सेस कैलकुलेट करने की, तब क्या कवर नहीं किया जाएगा। सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशंस ऑफ द सेस कैलकुलेशंस। एनी कंपनसेशन पेड और पेएबल, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को किसी भी वजह से कोई कंपनसेशन पे किया है, किसी भी डेट की वजह से, तो वो ऐसा कंपनसेशन भी उसमें कवर नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग इंटरेस्ट की रेट थी, किसी भी टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होती है। पीएफ में रेट सेंट्रिक अलग है, डैमेजेस और इंटरेस्ट की ESIC में चेंज है। उन्होंने उसको बोल दिया कि 2% की जो हायर रेट थी उसको चेंज करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेट डिसाइड करेगी, मैक्सिमम वो 18% होती है। इनकम टैक्स में भी 18% है, वही 18% का फॉर्मूला लेबर लॉ में भी आने वाला है कि वो इंटरेस्ट रेट 24% से चेंज करके 18% पर हम लोग जाने वाले हैं। साथ में इसने पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेस में ट्रांसफर, स्टेट गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर की पावर थी सेस को किसी को वेव ऑफ करने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है कि सेंट्रल को, क्योंकि एक्ट सेंट्रलाइज हो गया तो पावर भी सेंट्रल डिपार्टमेंट के हाथ में चली गई है। ऐसा बोला गया है कि नेक्स्ट आपको जो भी सेस का पेमेंट करना है, उस सेस का 1% पेमेंट आप अपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे करो, रिटर्न फाइल करो और उसी को डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करे, असेसमेंट करे, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में स्क्रूटनी 6% 8% केसेस की होती है, वैसे ही सेम केसेस 6% 8% ही होंगे। हर केस असेसमेंट में लेना की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर वो लोग इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग, BOCW का अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर पहले डिस्प्यूट आता था कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी, हम लोगों को बिना पूछे कुछ बताए कर दिया है कैंसिल। तो नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नॉट कंपल्सरी फॉर रिजेक्शंस। रिजेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन सभी तरह से कंप्लीट नहीं है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है और अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए हेल्पलाइन डिसाइड की जाएगी। हमने जो भी प्रोविजंस लिए हैं हमने नंबर वाइज लिए हैं, सेक्शंस वाइज लिए हैं, इसलिए बीच में कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए फंड डिसाइड किया जाएगा और उनकी हेल्पलाइन यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। वो हेल्पलाइन उनकी वर्क्स के लिए काम करेगी। यहाँ पर उन्होंने उसमें बोल दिया है कि जो उनकी एज रहेगी मिनिमम 16 साल रखना कंपल्सरी है। 16 साल से नीचे का एम्प्लॉय अगर कोई सर्व करता है तो वो कवर नहीं होगा। रिकॉर्ड्स और जो भी रजिस्टर्स, रिटर्न्स, सैलरी स्लिप्स सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन करना है।
रजिस्टर्स वाला फॉर्मेट और पे स्लिप का प्रिंट आउट निकाल के एम्प्लॉय को दो, वो जमाना गया। अभी उसके व्हाट्सएप पे भेजो, मेल पे भेजो, वर्चुअली करो। तो वर्चुअली आप जो भी करेंगे सब अलाउड है और वर्चुअली पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। पावर ऑफ रिकवरी टू डैमेजेस, यहाँ पर दिया गया है कि अगर डैमेजेस का जो अमाउंट आपके ऊपर कवर होता है तो वो जो आपका बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है उससे एक्सीड नहीं करेगा। अभी तक के केस में क्या होता था कि अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है, डैमेजेस काफ़ी पुराना है तो डैमेजेस एक्सीड कर जाता है। गवर्नमेंट ने उस पर केपिंग लगा दी है कि वो अब अमाउंट जो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है उससे चेंज नहीं होगा। साथ में जो पहले पावर थी अलग अलग एक्ट्स की यूनिफॉर्म प्रोसीजर उन्होंने लगा दी है कि चाहे वो पीएफ हो, ईएसआईसी हो, ग्रेचुटी हो, पीओसीडब्ल्यू हो, कुछ भी हो, सबके लिए यूनिवर्सल एप्लीकेबल है और सेम प्रोसीजर उसकी रिकवरी की रहेगी। प्रायर अपॉर्चुनिटी बिफोर प्रोसिक्यूशंस, एक सबसे बड़ा अच्छा एक और चेंजेस यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपके ऊपर कोई नोटिस आया हुआ है, आपके ऊपर असेसमेंट हो रहा है, आप अभी तक भी कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं करें, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आपको यहाँ पर प्रोसिक्यूशंस के पहले एक राइट्स दिया जाता है कि भाई अभी भी कंप्लायंस कर ले, अभी भी तेरे को लास्ट अपॉर्चुनिटी, अगर तू एग्री करता है तो वो केस में तेरा सारा बर्डन क्लोज कर देंगे। और अगर वो एक बार फॉलो कर ली, हमने ऑप्ट आउट कर ली वो स्कीम्स और ऑप्ट आउट कर लिया वो डिपार्टमेंट का ऐसा प्रोसिक्यूशन या जो भी प्रोविजंस है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स तक अगर मैं कोई डिफॉल्ट करता हूँ वापस तो मुझे वो सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 3 साल के लिए वो बैन हो जाएगी। 3 साल के पहले अगर मेरा नॉन कंप्लायंस है तो मुझे कवर करना है, प्रॉपर उसको करना है। दूसरा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक आता था, हमें ER1 ER2 फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे, उसको यहाँ पर उन्होंने नाम चेंज करते हुए कैरियर सेंटर दे दिया है। कैरियर सेंटर मतलब जो कोई भी हो सकता है, वो पोर्टल भी हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, कोई प्लेसमेंट एजेंसी भी हो सकती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम करेगा, वैकेंसीज के लिए काम करेगा। साथ में वो ये भी बताएगा कि एम्प्लॉय का एनहांसमेंट कैसे किया जा सकता है, स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती है, तो उसका नाम उन्होंने चेंज किया है। तो ये था हमारा कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कोड ऑफ वेजेस 2019, जो कि 2019 में पास आउट हो चुका था बट एप्लीकेबल 21 नवंबर से किया है। यहाँ पर लेबर कोड्स में जो हमारा पीरियड्स कवर होता था पहले, वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर होता था। अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग डेफिनेशन थी। ग्रेचुटी में फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन थी, अदर लेबर एक्ट्स में करंट कैलेंडर ईयर की डेफिनेशन थी। उन्होंने उसको चेंज करते हुए सबके लिए यूनिवर्सल 1 अप्रैल से 31 मार्च चेंज कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशंस में थोड़ा सा चेंज किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन होंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर ISMW भी कवर कर दिए गए हैं। ISMW क्या होते हैं मैं आगे थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्योंकि ISMW पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है, उनके वेलफेयर की बात की है, तो मैं आगे उसको कवर करूँगा कि ISMW क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स में चेंज किया है, ISMW कवर किए हैं, प्लस साथ में जो एम्प्लॉयज परमानेंट रोल पे काम कर रहे हैं या आपके परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर उसमें कवर नहीं होंगे। एम्प्लॉय की डेफिनेशन यूनिफॉर्म डेफिनेशन है सबके लिए, सब्जेक्ट टू अप्रेंटिसी और आर्म्ड फोर्सेज उसमें कवर नहीं होंगे, क्योंकि अप्रेंटिसी का सेपरेट प्रोविजन चलता है, अप्रेंटिसी एक्ट के हिसाब से कवर होता है। एस्टैब्लिशमेंट्स की भी डेफिनेशन सेम है, पूरे जितने भी एक्ट्स है 29 उसके लिए सेम रहेगी, हर किसी के केस में कोई चेंजेस नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, तो आप उसमें सेग्रीगेट नहीं कर सकते। जेंडर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब इक्वल है, सबको सेम पेमेंट देना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड द स्ट्रक्चर। तो आप उसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, फ्लोर रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उस फ्लोर रेट के हिसाब से स्टेट को फॉलो करना है और उसी के हिसाब से मिनिमम रेट का पेमेंट करना कंपल्सरी है। तो ये जो बेनिफिट्स है वो जो स्मॉल एम्प्लॉइज है, छोटे एम्प्लॉइज है या कैजुअल वर्कर्स है, उनके केस में बेनिफिट मिलने वाला है कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कम से कम उनको उतनी रेट तो मिलेगी। हाँ, फिक्सेशन आवर्स ऑफ वर्किंग 48 आवर्स फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको वीकली 48 आवर्स सर्व करना है। अब यहाँ पर आप 48 आवर्स 4 दिन में सर्व करो, 5 दिन में सर्व करो, 6 दिन में सर्व करो, कैसे भी सर्व करो, डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी और डिपेंड्स ऑन द
आपने अपने एम्प्लॉयज को, अपने एम्प्लॉयर को क्या इन्फॉर्म किया है। तो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब्जेक्टिव की काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है सब्जेक्टिव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। साथ में एक वीकली ऑफ रखना कंपलसरी है। आप वो वीकली ऑफ संडे को रखो या किसी भी दिन को रखो, और बट वो वीकली ऑफ रखना कंपलसरी है। और अगर 48 आवर्स से ज़्यादा होता है तो ओवर टाइम कंपलसरी रहेगा और 2 टाइम ऑफ वेजेस उसमें उस केस में देनी पड़ेगी। उसके अलावा नहीं है। 5 घंटे के बाद में इंटरवेल कंपलसरी है। ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा जिसको कंटिन्यूसली 8 घंटे सर्व करना है। 5 घंटे के बाद में इंटरवेल कंपलसरी है। ये प्रोविजंस पहले भी थे, उनको थोड़ा सा सिंपलाइज कर दिया और उन्होंने यूनिवर्सल एप्लीकेबल कर दिया है। लंच ब्रेक है वो 48 में कवर है। लंच ब्रेक 48 आवर्स में कवर है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, केस अलाउड नहीं होगा। सारा का सारा जो पेमेंट करना है वो ओनली और ओनली डिजिटल मोड में ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बोला कि डिजिटल का जमाना है, केस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। डेली वर्कर के केस में भी हाँ, वो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि सर वो तो दिहाड़ी मजदूरी है, उसको उठा के लाया तो उसको ऑनलाइन कैसे पेमेंट करो। गवर्नमेंट इसमें आगे कैसे रिलैक्सेशन देती है, क्या क्लेरिफिकेशन देती है, वो आने की वाली बात है, क्योंकि डेली वर्कर के केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोग भी टेक्निकली जानते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो वो केस में उनका ऑनलाइन कैसे क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट देती है, उसका आना बाकी है। बहुत सारे बैंक अकाउंट भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे उसी बेसिस पर गवर्नमेंट आगे क्लेरिफाई क्या करती है उस पर डिपेंड करेगा। अभी तो उन्होंने यही लिखा है कि डेली वर्कर को भी आपको डे एंड पर पेमेंट करना है और केस में पेमेंट नहीं करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। टाइम लिमिट दी गई है पेमेंट की कि कैसे कैसे करना है। डेली वर्कर को डे एंड पे करना है, वीकली वर्कर को वीकेंड पे करना है, मंथली जो वर्कर है, परमानेंट वर्कर है, उसके केस में नेक्स्ट 7 तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए। 2 चीज़ें यहाँ पर और निकल के आ रही है कि जिसके पास 1000 प्लस एम्प्लॉई है उसको कंपल्सरली 7 तारीख तक पेमेंट करना है। जिसके पास 1000 एंड बिलो है उसके केस में 10 तारीख तक का प्रोविजन गवर्नमेंट दे सकती है। अभी ऐसा क्लेरिफिकेशन आ रहा है, आगे क्या फर्दर क्लेरिफाई करेगी और नोट्स में क्या ड्राफ्ट रूल्स में क्या डिफाइन करेगी उस पर डिपेंड करेगा। एपेडम के केस में T+2 डेज वही रहेगा और यहाँ पर वर्किंग डेज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है पेमेंट के केस में, क्योंकि डिजिटल मोड का जमाना है। तो उस केस में आपको संडे को भी पेमेंट करो, हॉलीडे को भी पेमेंट करो, बट एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट में पेमेंट जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर चेंजेस किया गया है कि वेजेज जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो उसमें से क्या क्या डिडक्शंस अलाउड होंगे और क्या क्या डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे। तो जो सीलिंग लिमिट, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ TDS की, PT की, PF की, ESIC की, ये तो पहले भी अलाउड थे, आगे भी अलाउड होंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं। कुछ कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज़ के बिहाफ पे पोस्ट ऑफिस में पॉलिसीज ओपन करवाती है या पोस्ट ऑफिस में कंट्रीब्यूशंस करवाती है। तो ऐसी जो भी कोई कंट्रीब्यूशंस हमारा रहेगा इंश्योरेंस कंपनीज का या पोस्ट ऑफिस का, वो अलाउड नहीं होगा। दूसरा चीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर आप परचेज करवाते हो अपने एम्प्लॉइज़ को, उसका कोई भी प्रीमियम हम पे कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, वो एक्सक्लूडेड रहेंगे, वो आप यहाँ एम्प्लॉइज़ की सैलरी से डिडक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड्स वगैरह ऐसा कुछ है तो उसका भी कोई प्रीमियम्स वगैरह है तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। मैक्सिमम पहले जो लिमिट थी डिडक्शंस की वो 75% थी, उसको चेंज करते हुए उन्होंने 50% की लिमिट कर दिया है कि डिडक्शन 50% से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपने कोई डिडक्शंस कर लिया और एम्प्लॉय का डिपॉजिट नहीं कराया तो उस केस में एम्प्लॉय की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारा का सारा डिफॉल्ट एम्प्लॉय का माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं बोनस की। तो बोनस के केस में कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एलोकेबल सरप्लस में उन्होंने चेंज किया है। पहले भी जो बोनस एप्लीकेबल था, अगर किसी के पास 20 एंड अबव एम्प्लॉइज हैं तभी बोनस एप्लीकेबल था, आगे वही सेम कंटिन्यूटी एप्लीकेबल रहेगा। अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है और 5 साल तक उसका कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, अलोकेबल सरप्लस लॉस में आ रहा है, तो वो केस में उस पर बोनस एप्लीकेबल नहीं होता, वही सेम प्रोविजन आगे रहेगा। रेट्स जो थी मिनिमम बोनस की 8.33% वही आगे कंटिन्यू है और हायर साइड जो है 20% वही आगे कंटिन्यू है, सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस। अब ये एलोकेबल सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एलोकेबल सरप्लस की कैलकुलेट करने की जो डेफिनेशन बोनस एक्ट में दी है उसी को उन्होंने आगे रेफर किया है कि वही डेफिनेशन सेम होगी, उसमें कुछ डिडक्शंस अब अलाउड नहीं होंगे। आप इनकम टैक्स का डिडक्शंस और डेप्रिसिएशन का डिडक्शन को एडवेट करो, बट बाकी जो डिडक्शंस हैं वो अलाउड नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व की, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस की,
इसका हम लोगों को एडवेक प्रोविजंस देना होता था एलोकेबल सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए। तो अब ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने की बातें हो गई है कि डेवलपमेंट अलाउंसेस भी कुछ होगा या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस भी कुछ होगा। तो ऐसे अलाउंसेस अब अलाउड नहीं है और कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। बाकी जो बोनस की कैलकुलेशन है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसमें एडवेक होता है इनकम टैक्स और द डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स और कंपनीज है, वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसको पेमेंट करने की जो ड्यू डेट्स थी कि ईयर एंड के 8 महीने के अंदर उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, वही सेम आगे कंटिन्यू है। 30 नवंबर तक आपको पेमेंट करना है। अगेन वापस गवर्नमेंट ने इसमें क्लेरिफाई किया है कि बोनस वापस ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, केस में अलाउड नहीं होना। जो दुकान से शॉप है वो क्या करती है, ईयर एंड पे या दिवाली के टाइम पे या कुछ भी इनॉग्रेशन के टाइम पे बोनस देती है, एक पगार एक्स्ट्रा केस में देती है। गवर्नमेंट ने उसी को क्लेरिफाई किया कि नहीं ऑनलाइन दो, दिखना चाहिए, कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसमें भी फर्दर क्लेरिफिकेशन आना बाकी है कि क्या छोटी जो दुकान है उसके केस में भी क्या ऑनलाइन सिस्टम रहेगा या केस में भी अलाउड हो जाएगा। बोनस किस पर एप्लीकेबल नहीं है, न्यू प्रोविजंस गवर्नमेंट बोल दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्पावर टू एग्जेम्प्ट एम्प्लॉइज इन स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट हैविंग रिगार्ड टू द, मतलब पहले यहाँ पर बोला गया था कि किसी के गवर्नमेंट के पास राइट्स है किसी को एक्सेप्ट करने के लिए कि उस पर बोनस एक एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अभी वो राइट्स हटा दिए गए, सारे के सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और यूनिवर्सली सबके ऊपर एप्लीकेबल है। बोनस के जो प्रोविजंस है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, LIC के ऊपर, डॉक वर्कर्स के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसी कोई भी है, RBI वगैरह है, तो उनके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। रिकॉर्ड्स रिटर्न्स वही सारे डिजिटल मोड में रखने हैं। अगेन वापस यहीं पर बोला गया है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इंस्पेक्टर राज खत्म करके हम लोग आपके लिए हेल्पलाइन वाले सिस्टम लगाएंगे कि इंस्पेक्टर आपको फैसिलिटेटर जैसा भी काम करके देगा, आपको गाइड करेगा कि आपके यहाँ पर क्या कमी है, आपको क्या प्रोविजंस और ध्यान रखने हैं। तो उनका यही बोलना है कि इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। ये सारे जो भी प्रोविजंस है मनरेगा जो भी एम्प्लॉइज है 100 डेज या 150 डेज या 120 डेज का जो भी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट जो और मेजर एक हमारा आता है कोड आता है वो आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। इससे पहले मैं बात करूँ तो यही सारी जो रिस्ट्रक्चरिंग करवानी है, यही जो प्रोविजंस हमें हमारे जो क्लाइंट्स है, कॉर्पोरेट्स है, नॉन कॉर्पोरेट्स है, उन्हीं को गाइड करना है कि सर ये चेंजेस हुए हैं। यही हम CS के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग कैसे रिस्ट्रक्चरिंग करें, कंपनी की पॉलिसीज में क्या चेंजेस करवाएं, HR पॉलिसीज क्या चेंजेस करवाएं, क्या न्यू प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होगी, न्यू लीव एंगेजमेंट कैसे कैलकुलेट होगी। तो यही हम CS के लिए इसी कोड में प्रोविजन अपॉर्चुनिटीज है जिसका हम लोगों को बेनिफिट्स लेना चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड हमारा आता है 3rd नंबर का। इसमें थोड़ा सा एम्प्लॉयज के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और उनकी ध्यान दिया गया है कि क्या वर्किंग कंडीशंस वगैरह होना चाहिए। एज जो थी उसको चेंज करते हुए उन्होंने चेंज कर दिया गया है कि चेंज इन लोअर एज लिमिट इन डेफिनेशंस ऑफ द कंप्लीटेड 15 ईयर्स टू 14 साल उसको कर दिया गया कि मिनिमम 14 साल का एम्प्लॉयज होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड एक्ट में 14 साल बिलो 14 ईयर्स का एम्प्लॉय कोई भी काम नहीं कर सकता। तो वही उन्होंने सेम यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए सभी को 14 कर दिया है कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स में ISMW भी कवर होंगे। एस्टैब्लिशमेंट्स के केस में न्यू डेफिनेशंस जो यूनिवर्सल डेफिनेशंस है वही सबके लिए एप्लीकेबल है। वहाँ पर उन्होंने मल्टीपल जो डेफिनेशंस थी अलग अलग एक्ट्स की उसको चेंज करते हुए यूनिवर्सल एप्लीकेबल दे दी है। और यहाँ पर वो भी बोला है कि किसमें क्या एप्लीकेबल होगा, सब्जेक्ट टू 10 एम्प्लॉइज की 20 एम्प्लॉइज, उन्होंने उसको फर्दर क्लेरिफाई कर दिया है। फैमिली फैक्ट्री के केस में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को रिलैक्सेशन मिला है कि जो विदाउट एड ऑफ पावर काम करता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है, वो केस में 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा के केस में हम लोग को फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता था, फैक्ट्री लाइसेंस की कंप्लायंस करनी पड़ती थी। उसको चेंज करते हुए उन्होंने एनाउंस कर दिया है कि अब 20 एम्प्लॉयज की लिमिट रहेगी। अगर किसी के पास 20 से कम एम्प्लॉय है विदाउट एड ऑफ पावर काम विद एड ऑफ पावर काम कर रहा है तो वो केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 20 से ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट है। और विदाउट एड ऑफ पावर कोई काम कर रहा है ऐसा फैक्ट्री, तो जो लिमिट 20 की थी उसको इनहांस करते हुए उन्होंने 40 कर दी है कि 40 एम्प्लॉइज तक आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फैक्ट्री लाइसेंस का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा, वो सारा का सारा ऑनलाइन है। कुछ स्टेट्स में अभी भी ऑफलाइन मोड चलता है, डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया है कि नहीं अब ऑफलाइन सिस्टम नहीं चलेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही होगा।
फैमिली की डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि इसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, विडो, डॉटर और सब भी कवर हो चुके हैं, सास ससुर भी उन्होंने कवर कर दिया है। साथ में एक्सक्लूड कर दिया कि अगर कोई एम्प्लॉइज इनकम अर्न कर रहा है एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंटली, वो कवर नहीं होगा। गो डाउन की डेफिनेशंस में भी चेंज कर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट्स में गो डाउन भी अब आपके कवर हो जाएंगे जो किसी भी तरह से आपका रेवेन्यू जनरेट करने का काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ISMW एम्प्लॉइज की। ये ISMW एम्प्लॉइज क्या होते हैं, इसके प्रोविजंस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉइज हमारे सामने आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं बिहार से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से। तो ऐसे एम्प्लॉय जो अदर स्टेट के यहाँ पर काम कर रहे हैं, दैट आर द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, तो वो भी एम्प्लॉइज CLRA में कवर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस में कवर हो जाएंगे। कौन कवर नहीं होंगे, जिनकी वेजेज 18,000 रुपये से ज़्यादा है, ऐसे एम्प्लॉइज ISMW में कवर नहीं होंगे, एक्सक्लूडिंग रहेंगे। बिलो एम्प्लॉइज जो भी है वो ISMW में यहाँ पर कवर रहेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट एस्टैब्लिशमेंट्स, कंपनी की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि वो डिस्क्लोज करें रजिस्टर्स, जो रजिस्ट्रेशंस है, जो अपने नेम बोर्ड्स हैं वहाँ पर आपको डिस्क्लोज करने की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि शॉप इंस्पेक्टर आता है, उसके बाद उसका जो निकल के आता है कि नहीं ये कंपनी कंप्लाइंसेस नहीं कर रही है, ये कुछ कमी है, तो वो हम लोगों को कंप्लाइंसेस करनी है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ध्यान दें, PF का कंप्लायंस कराए, टाइमली सैलरी पेमेंट करे, अपने एम्प्लॉइज के प्रोटोकॉल्स पर ध्यान देंगे, उसकी एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी कमेटी रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी कमेटी की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट डाल दी गई है कि कंपनी को सेफ्टी कमेटी अपने यहाँ पर बनानी पड़ेगी, सेफ्टी ऑफिसर बनाने पड़ेंगे। कौन सी कंपनी, जिसके यहाँ पर 500 मैन पावर है, उसके केस में कंपल्सरी है। जो ऐसी कंपनी है जो हजार्डियस का काम कर रही है, जो लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज का काम कर रही है, उसके केस में 250 एम्प्लॉइज की रहेगी। जो अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन वर्कर के केस में, उसके केस में 250 की लिमिट रहेगी। और जो माइन और डॉक वर्कर्स है उसके केस में ये लिमिट 100 एम्प्लॉइज की रहेगी। वीकली ऑफ आपको देना है, वीकली ऑफ कंपल्सरी कर दिया गया है। एक्स्ट्रा वेजेस आपको ओवर टाइम पर देना पड़ेगा, डबल रेट से अलाउड नहीं होगा। वुमेन्स को भी नाइट शिफ्ट में अलाउ कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू उनकी कंसेंट एंड द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। कोई भी एम्प्लॉय डबल जगह काम नहीं कर सकता। अभी एम्प्लॉय क्या करता है, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट में एक जगह काम कर लिया और इसी टाइम पर दूसरी जगह भी काम कर रहा है, तो अगर अगले 12 घंटे में उसने कहीं पर काम किया है तो नेक्स्ट दूसरी जगह वो अलाउड नहीं होगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट्स या जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे। ये यहाँ पर मेजरली ध्यान समझ में आता है जब PF के प्रोविजंस हम लोग करते हैं कि एम्प्लॉइज डबल एम्प्लॉयमेंट में भी काम कर रहा है, तो वो ऐसा चीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय की हेल्थ के हिसाब से ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन डाला है। एनुअल लीव का मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि पहले जो एक्ट में लिमिट थी कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 240 डेज सर्व किया है तो उसको लीव अक्रूड होती थी और लीव देना कंपल्सरी था। अभी उसको चेंज करते हुए उन्होंने 240 की जगह 180 डेज यहाँ पर कर दिया है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने मिनिमम 180 दिन पिछले साल काम किया है तो आपको लीव देने की रिक्वायरमेंट है। अब लीव कितनी मिलेगी, यहाँ पर पहले भी लिमिट्स थी, अलग अलग एक्ट्स की अलग अलग लिमिट चलती है। तो लीव के लिए जो इस OSH कोड में डाला गया है उसमें डाला गया वर्कर्स का कॉन्सेप्ट। और वर्कर्स की अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो जो इसकी वेजेस 18,000 रुपये या उससे कम है वो कवर होंगे, उससे ऊपर वाले जो कवर होंगे वो सोमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो रेस्पेक्टिव एक्ट का है उसके हिसाब से ही कवर होंगे। 20 दिन वर्किंग पर एक छुट्टी देनी है, मतलब मिनिमम 18 लीव आपको देनी ही देनी है साल भर में किसी एम्प्लॉय को। 30 डेज का कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट रहेगा कि 30 डेज से अगर ज़्यादा कुछ हो जाती है तो कैरी फॉरवर्ड रहेगी और एंगेजमेंट भी तभी मिलेगी 30 डेज से ज़्यादा ओवर एंड अबाव होने पर। और ये जो कॉन्सेप्ट है अगर वो अडल्ट है उसके केस में 20 दिन की जगह 15 दिन पे डाल दिया गया, मतलब जो नॉर्मल एम्प्लॉय को 20 दिन की 18 दिन की छुट्टी मिलेगी, अडल्ट के केस में वो जो लीव है या चाइल्ड है उसके केस में 27 दिन की लीव मिलेगी। तो 30 डेज की मैक्सिमम लीव्स रहती है, उसके केस में एनकेजमेंट एप्लीकेबल है और उसी के केस में कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन लगेगा। एक और बड़ा चेंजेस यहाँ पर रिलैक्सेशन हम लोगों को दिया गया है CLRA के केस में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस का उन्होंने फर्दर क्लेरिफाई किया कि जिसके पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उसके केस में उसको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती थी। अभी यहाँ पर उसको एनहांस करते हुए उन्होंने बोल दिया कि अब 50 की लिमिट हम करते हैं
50 तक अगर तेरे पास एम्प्लॉई है तो तुझसे CLRA लाइसेंस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 50 से ज़्यादा अगर आपके पास एम्प्लॉइज हैं तो ही आपको CLRA लाइसेंस लेना है, उसका कंप्लाइंस करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जो आपको लाइसेंस दिया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सिविल की डिग्री, सिविल लाइसेंस अगर आप ले रहे हो तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस, सिविल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस अगर आप ले रहे हो तो इलेक्ट्रिकल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर ये डिग्री नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयर को कौन सा आता है कि यार मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा, मैं काम कैसे करूँगा? तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आपको वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस दिया जाएगा। उन्होंने फर्दर क्लेरिफाई किया कि अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है 1 ईयर, 2 ईयर्स या 5 ईयर्स का, तो आपको वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस यहाँ पर दिया जाएगा। तो वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस का उन्होंने कॉन्सेप्ट डाला है। दूसरा उन्होंने डाला है कि यहाँ पर हम जो लाइसेंसिंग राज खत्म करते हुए एनुअल रिन्यूअल का जो कॉन्सेप्ट था कि हर साल आपको रिन्यू करवाना है CLRA, वो हम खत्म करते हैं और मिनिमम 5 साल का लाइसेंस हम आपको देते हैं। एक बार जो लाइसेंस दे दिया वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। 5 साल की पीरियड में आपको रिन्यूअल कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका यहाँ पर कंप्लाइंसेस कम हो जाएगा। इन बिटवीन अगर आपका काम खत्म हो जाता है तो आप सरेंडर करो लाइसेंस और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करो। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम जो बात करें, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी CLRA वाले एम्प्लॉयज के कंप्लायंस वेलफेयर की, बेनिफिट्स की, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की थी, है और आगे भी रहेगी। और उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका डिडक्शन जो भी होता है वेलफेयर में जो भी काम करता है उसका एम्प्लॉय से डिडक्ट करे या ना करे, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की रहेगी। इंटर स्टेट माइग्रेंट्स को थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि उनके केस में भी PF और ESIC के बेनिफिट्स दिए गए हैं। दूसरा चीज, उन पर ड्यूटी कास्ट का अलाउंसेस आपको देना होगा। मतलब अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तो अपने घर से यहाँ पर ऑफिस में जो आ रहा है और यहाँ से नौकरी छोड़ के जब वापस जाएगा तो इस टाइम का जो ट्रेवलिंग अलाउंसेज है, ट्रेवलिंग कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी। वो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट डाल दी गई है। अगर वो आप नहीं देते हो तो आपको जो भी पीनल प्रोविजन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये जो वापस घर जा रहा है, लीव पे जा रहा है, उस टाइम की वेजेस की देने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। तो ये उसमें ISMW के प्रोविजंस थे। लास्ट हमारा जो कोड आता है उसको मैं समराइज कर रहा हूँ टेबुलर फॉर्मेट में कि अभी क्या इसमें चेंजेस हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड में क्या चेंजेस हैं? पहले हम लोगों को स्टैंडिंग ऑर्डर जो लेना पड़ता था, वो अगर मेरे पास 100+ मैन पावर है उसके केस में स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने पड़ते थे, पॉलिसीज बनानी पड़ती थी। अभी उसको चेंज करते हुए, रिलैक्सेशन करते हुए उन्होंने 300+ मैन पावर कर दी है। पहले के केस में ले ऑफ करने की रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन 100+ मैन पावर है तो ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। अभी इसको चेंज करते हुए 300+ मैन पावर के केस में कर दी है। इसके केस में थोड़ा सा मार्केट में ऑब्जेक्शंस है। आम पब्लिक को लग रहा है कि सर अगर हमें 300 से कम एम्प्लॉइज हैं तो हमें फटाफट से फायर कर दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आने की रिक्वायरमेंट हम लोगों को लग रही है कि गवर्नमेंट इसमें क्लेरिफाई करेगी। स्ट्राइक पहले इजीली था, कोई भी स्ट्राइक पे चल जाता था मेजरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में। अब उसको 14 डेज का मिनिमम नोटिस पीरियड देना कंपलसरी है कि अगर आप प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हो तो आपको 14 दिन का मिनिमम नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हो जो रेगुलर एक्टिविटी से जुड़े हैं, चाहे बैंकिंग हो या आपकी जो भी एम्प्लॉइज के रेगुलर एक्टिविटीज के लिए काम करते हो, तो मिनिमम 60 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, कंपलसरी है। अदरवाइज आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्केट में ऑब्जेक्शन है स्ट्राइक के लिए। सारा का सारा पहले डिजिटल फाइलिंग लिमिटेड था, उसने गवर्नमेंट ने चेंजेस करते हुए उसको ऑनलाइन कर दिया है। सारा का सारा रजिस्ट्रेशन होगा। ये था हमारा सारा कोर्स और लेबर कोड का सारा समराइज था जो कि मैंने कवर कर दिया है। 5 मिनट में आपकी और लूँगा। क्या हम लोग हमारे क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं? क्या मार्केट में स्कीम्स अवेलेबल है PF और ESIC के रिगार्डिंग? क्या उनको बेनिफिट्स हम लोग दिला सकते हैं? तो मार्केट में एग्जिस्टिंग ऐसी 3 स्कीम्स अवेलेबल थी। अभी एक स्कीम ESIC स्कीम जो थी गवर्नमेंट की, वो इसका एक्सपायरी हो चुका है। PF की 2 स्कीम्स अभी भी कंटिन्यू है, तो मैं उस पर बात करता हूँ और इसमें 5 मिनट आपके मोर लूँगा, उसके बाद कंक्लूड कर दूँगा। सबसे पहले आती है एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कंपनी। EEC स्कीम्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने डाली है कि अगर आपके पास ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जिसका कवरेज एप्लीकेबल था, आपको PF का कंप्लाइंसेस करना था, आपने नहीं किया, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक अगर ऐसा नॉन कंप्लाइंसेज है तो आपके पास ऑप्शन है, आज भी रजिस्ट्रेशन ले लो और कंप्लाइंसेज कर दो। वॉलेंटरली आप जो डिक्लेयर करोगे दैट इज द सफिशिएंट, डिपार्टमेंट उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। अगर आपने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कट किया है तो भरना है, दोनों साइड का, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर। और अगर आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कट नहीं किया है एम्प्लॉय का,
तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भरना है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट बियर करेगी। साथ में यहाँ पर बोला गया कि डैमेजेस आपको नहीं लगेगा। अगर आप 2017 का कंप्लायंस आज करते हो, 18 का कंप्लायंस आज करते हो, तभी आपको डैमेजेस हम नहीं लगाएंगे। एक नॉमिनल डैमेजेस 100 रुपीज ओनली लगेगा। इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होता है वो इंटरेस्ट एप्लीकेबल लगेगा। तो यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे क्लाइंट्स के पास अवेलेबल है कि अगर किसी का नॉन कंप्लायंस है, किसी का नोटिस आया हुआ है असेसमेंट्स का, तो भी वो इसमें कंप्लायंस कर सकता है। आप देख रहे हो कि अपने क्लाइंट्स के पास मेल मैसेजेस इस टाइप की ज़्यादा आ रहे हैं कि इंटीमेशंस आ रहे हैं कि आप इस स्कीम में फॉलो कर लें और अपने कंप्लायंसेस को क्लीन कर लें। तो ये अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये स्कीम्स पहले भी कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने दी थी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के नाम से। अभी उसको मॉडिफाई करते हुए, एनहांस करते हुए और डेवलप करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना डाल दी है, पीएफ में। उसका मेन मोटो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। मोदी सरकार का ये कहना है कि हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? जब हम कंपनीज को बेनिफिट देंगे, उनका कंट्रीब्यूशन रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनी आपके पास है जिसका पास 50 से कम एम्प्लॉय हैं, तो आपको 2 नए एम्प्लॉय ऐड करने हैं। और अगर आपके पास ऐसी कंपनी है जिसके पास 150 से ज़्यादा मैन पावर है, तो वो केस में 5 नए एम्प्लॉय ऐड करने हैं। नए एम्प्लॉय मतलब क्या? जिसका फर्स्ट टाइम यूएन नंबर जनरेट होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आना चाहिए। देन वो एम्प्लॉय का मतलब क्या? जिसकी वेजेज या सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेनिफिट एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का जो जीएसटी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट करेगी। अब यहाँ पर कितना होगा? तो 15,000 की सीलिंग लिमिट दी गई है कि फर्स्ट 6 मंथ्स अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो पहले 6 महीने कंप्लीट करने के बाद 15,000 रुपये जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है, अप टू 15,000 रुपीज़ वो उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे ही एम्प्लॉयर के केस में लिखा है कि अगर 10,000 रुपये तक सैलरी है तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ, 10,000 से 20,000 है तो 2,000 रुपीज़ पर मंथ, और उससे ज़्यादा है तो 3,000 रुपीज़ पर मंथ। ये बेनिफिट अगले 2 साल तक मिलेगा। अगर हमने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ऑप्ट कर दी तो 2 साल तक बेनिफिट अगले से मिलने वाला है। और अगर फैक्ट्री है तो वो फैक्ट्री के केस में 4 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप एम्प्लॉय जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो और आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस की चिंता नहीं करनी है, गवर्नमेंट उसको बियर करेगी। दिस वाज द स्कीम्स अबाउट द पीएम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। थैंक यू। एंड नाउ वी कैन टेक द क्वेश्चन आंसर सेशन। So in some of the companies, they have their full-time employees, they have their FTEs also, but they do work with Members, please be seated. hire some people on professional capacity also. Sir, can you speak out from Mr. Yeah, so they hire some people on professional capacity also, to, like IT companies. They hire some coder for say 6 months, so in a independent professional capacity. So will that cover under FTE or how? अगर वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम कर रहा है तो कवर होगा। अगर नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे कर रहा है, मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर रहा है, तो वो कवर नहीं होगा। Any other questions? Thank you so much. Thank you, Gurji. Now I request Hiren Mehta to please give him the account.